Please keep your cameras off. Please keep your cameras off. It is my very humble request. Please keep your cameras and mic off. कैमरा और माइक आपका ऑफ कर दीजिए प्लीज. Shirkesh sir, may I start? Ma'am, we will wait for 5 minutes and then we will start. Fine, sir. Fine, sir. Sheena ma'am, Narang ma'am has also joined. Sheena ma'am, we will start the session. Okay, sir. A very good afternoon to one and all present. I, Professor Sheena Unmesh, on behalf of Career Guidance Cell of Excelsius Education Societies, KT College of Engineering and Management Studies and Research, considered it as a great honor to welcome all the dignitaries, eminent speakers, and my dear students to this seminar titled, hello sir, is it making a disturbance? I think. Jitendra, please mute your mic. Jitendra, partly. Titled Changing Sessions in CET. Now let me introduce the society. On this occasion, I take the privilege to introduce Excelsius Education Society. It is an educational and charitable trust founded in 1978 and over the years has transformed into an ideal education complex. This was only possible with the ardent efforts of Dr. Mrs. Harsh Khanna and her husband, late Mr. K.C. Khanna. Their pursuit of excellence in the field of technical education, which was then a dream, has now found its manifestation in the form of various educational institutes like KC College of Engineering, Management Studies and Research, KB College of Arts and Commerce, and Beams Paradise English High School. It's indeed a great honor to be part of this institution. To embark on the journey of success, one needs the tool of preparedness, foresight, and strategy. Choosing the right career can be a very daunting task, especially in the world which offers an array of paths, all of which seems to be leading to a golden goal. Careers can actually make or break one's life, so it's important to make right choice. In keeping with the evolving technological advances, the Career Guidance Cell of KCC EMSR continuously helps the students to update their subject knowledge and skill sets and thereby guides them in choosing the suitable career. Today's talk by our eminent speaker is a step in achieving this goal. We have hosted activities designed for holistic development of college, and KCCMSR came up with the following clubs. So these are the following clubs that we have in our college.
One is women development cell, where we believe that sharing the spaces equally is very important between man and women. And once you people grow up and go into the world, it's very important for you to do that. Eco club, where we have got we believe in excelling the greener way, and we have got a compost pit and everything designed, and we believe in planting trees a lot. Youth Red Cross, which I need not explain what is Youth Red Cross organization. Rotract, it is a youth wing of Rotary where the students are trained for the personality development. Entrepreneurial cell, where we have got the startup. We believe where the startup excels. That is yes. Sheena ma'am, the PPT is not shared. No, sir, it is not PPT. Okay. Then we have got Sansad Adarsh Gram Yojana, which is development of the village. And here we have adopted a village in Pimpri, where we have taken up this initiative. We teachers and students go there, and we we host a plethora of events over there, right from what you call it as teaching. We have got a drawing competition we host. We have technical exchange of ideas. We train teachers of that village, and all hygienic programs and everything, we are into it. Then we have got a Mixed Mind Club, which is a cocktail of ideas with a twist, where students have got this habit of blog writing, and we try to develop them into it. TEDx, I need not explain it. You just know what TEDx platform is. We have hosted TEDx program from our college, National Service Scheme, NSS. I think it is also a very prestigious one. Training and placement cell, I would like to tell you here that we have hosted a lot. We have already placed so many students, and during this lockdown, it is a very prestigious moment for us. Why? Because during the lockdown also, we have 120 offer letters for our students with us today. So that's really commendable, and we believe it is an achievement. Convocation, definitely, it is the time when the classes are over, and you get your final degree, and you have a feather up in your cap with a degree. So that's a big celebration in our college. Alumni Association, we strongly believe, and we believe in staying connected to our alumni. So further, without wasting much of your time, let us enter into our first session of the day. I welcome Mr. Omkar Prakash Yadav for the chemistry session, and I hand over the session to Mr. Omkar Prakash Yadav, sir. Thank you. Yes, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Yeah, first we'll start with this weightage, and then we'll go for important topic of each chapter we'll discuss, and after that we'll have MCQ we are going to solve. Very, very important topics which are there that we are going to cover here. So now we'll say this. Say, as you see, this basic concept of chemistry in this mole concept topic comes 2% means 1 mark. As we see here, 2% is given here. That is basic concept of chemistry, states of matter, redox reaction. These all topics are of 11th standard. And then we have the surface chemistry also. 1 mark question are there, which are going to be there in our CET, this paper, MHT CET. The nature of chemical bond, here we have 4%, means 2 questions can be there. In this, it can be like, hybridization. Like suppose if we have sp3, sp2, hybridization sp. So examples we should know. Like in case of organic also, if we'll talk about, then suppose if we have triple bond here, then sp. For sp2, we have carbon-carbon double bond, that is alkene. And here alkane is there, like methane. Even more examples are there. So what we have to keep in mind in this nature of chemical bond is about hybridization. And say, yeah, generally
questions are there on hybridization. And then next we have hydrogen. 2%. As I said that 1 mark can be there for this. Then basic principle and technique comes in organic. This from here, this your chemistry 2, that organic starts, chem 2 here. Likewise, we have for this alkane here, solid state. Then after this, actually after alkane, now this your 12th standard topic starts, like solid state is there. If 6% is given, means you consider that 3 marks question can be there. Okay, and then thermodynamics is there, which is important. We have questions also on this. We are going to discuss. Even electrochemistry sums are there, thermodynamics, chemical kinetics. So these are the 3 chapters in which important the topic which is there that we are going to discuss here. Then as you see P block elements, it's very much, you know, say you have to remember most of the geometry and bond angle. Even reactions are there. And this, then further if you'll see D and F block comes. In this we need to know that position of lanthanoids, actinoids, electronic configuration, oxidation state, and color. Then further as we see coordination compounds 2%. So generally here there's hybridization and effective atomic number rule can be IUPAC of coordination compounds. As we move for halogen derivatives, here also we have like questions based on SN1, SN2 mechanism and optical activity. For alcohols, we have oxidation and dehydration reactions. Aldehyde and ketone is very important chapter, because in this many more name reactions are there. And this nitrogen, that amines, only 1 question can be there. And for biomolecules, this is also important, like, you know, this carbohydrates, proteins, lipids. For polymers, actually, these all are, you know, these 3 topics are memory based actually. So we should have knowledge of that chapter, and then only it will be easy to answer. And now we'll see actually this, say important topics I want to discuss. Say first we'll start with the DNA block, and then coordination, and I'll be there for Chem 1, and that I have kept at the end because organic is very important actually. ज़्यादा ज़रूरी है, because you might have experienced in your 12th exam कि बहुत सारी चीजें याद नहीं आती है. Some of the students, if you'll see, उन्होंने ऐसा भी लिख दिया था, if acidic acid is there and to get this, say, acetic anhydride, it should be P2O5 here, dehydration reaction. But by mistake, in hurry, students, what they have done, you know, some of them they wrote PCl5 by mistakenly. So organic, you know, it is very much volatile. So that we'll discuss first, and then we'll go for Chem 1. Yeah, all that PPT will have. PPT in the sense actually when I'll start writing an explanation will start, you will understand actually what I want to teach here or give the knowledge. Now we'll see that. Say for DNF block, generally what is very important is electronic configuration. So 3 you have to keep in mind. Initial start with lanthanum, and then we have gadolinium and lutetium. Okay. So for this, what you have to keep in mind is here it starts with xenon here, and we have 4F, 5D, 6S. One second. Yes. Now, why I am writing this all, you know, because most of the students, they think that this belongs to F block element, but no, lanthanum is D block element, because here it is 0, 1, 2. And for this gadolinium, if you will see here, that is 4F, 5D, 6S. So in this case, we get this
712 half filled. And for this lutetium, if we'll see here, 4F5D6S, that is completely filled, 1412. So these three are very much important because here we have completely filled F orbital, and this half filled. And as you see, this D block element. Important, actually, I want to discuss that oxidation state, how to remember. So that I'll write. If you know lanthanoid series, that is LACEPRND and PMSMEUGD, TBDYHOER, TMYBLU. Out of this all, so what trick I have is, like, just say this, Lalu, that you know our politician, अगर वो चाहते हैं पीएम बनना, अगर वो पीएम बन जाए तो क्या हो जाएगा, what will happen then? अब ये मेरी सोच नहीं है, अब ऐसा कोई भी सोच सकता है कि लालू पीएम बनने के बाद गधे पे बैठे होटल गए, एग राइस खाए. अगर इतनी जगह पे हम देखें, so these all you will get +3. In these all, oxidation state is +3. मैंने कहां से बोला था, मैं वापस रिपीट करता हूं, जस्ट फॉर फन या फिर याद रखने के लिए हम लोग ने बनाया है. हम किसी को मतलब सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं. बस हमने ये बोला था स्टार्ट के लिए कि यहां पे हमें मिल गया लू, पीएम बन गए, गधे पे बैठे, होटल गए और एग राइस ऑर्डर किया. इतनी जगह पे +3 है. एंड रेस्ट ऑल, बाकी जो गैप है, इन दैट व्हाट वी राइट इज, ये भी राइट, आगे जाना है आपको, 3 4 एंड देन वी हैव 2 3. That gap which is there in between, that gap which is there between La and PM, that gap we have to fill with greater number, like 3 4 3 4, and this gap here will write 2 3. Yeah, there's some connectivity issue. Yeah, we got this, I think. That is there. Just one sec, we'll be back. Many more topic is there to discuss here. So this is 3 4. Actually, I just wanted to tell you this, between this red circle which is there, in between the gap, we have to go for more number, like more than 3 4 3 4 3 4. Now less than 3, that is 2 3 2 3. And then again we'll fill here 3 4 3 4. And then again we have 2 3 2 3. In between comma is there, right? Just see this oxidation state which I have given. I wanted to write it vertically, but I wrote horizontal here. Otherwise it could have been much better to understand this. So what I did, in between that red circle, what you have to keep in mind is that these all, they produce only 3. Only 3 is there. And in between the gap, if you see 4 4 4, and then less number 2 2, then again we have 4 4, then again we have 2 2. And for ND, for this, we have all, actually, that is 2 3 and 4. That you have to keep in mind. Transition series, actually, this from 4th row it starts, 4th row and 5th row and say 6th and 7th we have. So this is first transition series. Here we have second transition and third transition and fourth transition series.
So very important is we should remember start and end. Actually, we should remember. Say here, science teacher, very clever man. Free coaching, never consider, क्योंकि जमता नहीं. Why I wrote this, because numbers we should know. Atomic number, it starts with 21, and you have to add 9, so we'll get 30. Again add 9, you'll get 39. Add 9, you'll get here 48. Again you have to add 9, you'll get 57. But here then your lanthanoid comes. So 57 to 71 is your lanthanoids. Again 9 you have to add, you'll get 80. Add 9, 89. Now this we have actinoid series here. Add 9, 112. Why I'm giving this atomic number, it starts like second transition starts with 39, ends with 48. Now we'll see that name of the element here. So the element here is yttrium. A जनाब मोटी सी रूठी रहती पहनदी अगर कुर्ता धोती. So here we have ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी. Then we can go for more here. That is AC. AC means A. C. C is the C. AC. डूब गया सागर में बोर हंस मत दूसरा रहेगा कौन. It is all actually why I wrote this, to get this twins here. So we'll see that means zirconium and hafnium, niobium and tantalum, molybdenum and tungsten, technetium and rhenium. These all are chemical twins. And the main reason behind this, why I wrote all this, is to know that first transition series, second, third, fourth transition series starts with which number. As I wrote here, it starts with 21. 21 आपको कैसे याद रहेगा? As you know, कि लड़कों के लिए शादी करने के लिए क्या एज बोला है? 21 ईयर पे शादी कर सकते हैं. तो ठीक है, 21 याद हो गया आपको. 21 है. एक्चुअली यू हैव टू ऐड 9 आप ऐड करेंगे आपको 30 मिलेगा, और 9 ऐड करेंगे 39, और 9 ऐड करेंगे 48, और 9 ऐड कर दिया तो कितना मिल जाएगा आपको इधर 57. बट एज आई सेड इतना आपका क्या होने वाला है, लैंथेनॉइड्स. ऐड 9, 80, ऐड 9, 89, देन हियर दिस actinoid, right, and add 9, 112. Very important this is. That's why I gave number. You keep it. Just you have to keep on adding 9, 9, 9, 9, and you will get start and end. And this with green pen which I have marked here, that is very important to remember. That is chemical twins. As their atomic size is almost similar, that is all because of effect of lanthanoid contraction. Many more topics are there. This just we started. More are there, so I have to move further. मुझे और आगे जाना होगा, आपको कुछ और चीजें सिखानी होंगी. Say for example, मैं अभी बात करना चाहूंगा कलर के बारे में. How you will remember this? आप कलर कैसे याद रखोगे? कलर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे सॉल्व करने के लिए, उसमें कलर याद रखना जरूरी होता है. सो विल सी दैट. अब मैंने इसके लिए आपके लिए एक आइडिया बनाया है
C, Y, V, people. For people, L is not there. B, G. ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं. C means C, Y, V. And now you got this. People, that is spelling मैंने पूरा नहीं लिखा है. And B, G is like busy. C, Y, V, people, B, G. Okay. So what to do in this? This is for first transition series. To remember color. Okay. I said science teacher very clever. लोग क्रूएल बोलते हैं, पर मैंने बोला कि क्रूएल क्यों बोलते हो भाई, है ना? क्लेवर बोल दो. साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन. फ्री कोचिंग, फ्री में कोचिंग नहीं करते. फ्री कोचिंग नेवर कंसीडर. क्यों नहीं करते? जमता नहीं. ओके. सो मुझे ये आपको ये सिखाना है कि लास्ट के जो दोनों दिख रहे हैं आपको, कॉपर Zn, और स्टार्ट के जो दोनों दिख रहे हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू राइट हियर. लास्ट के दोनों हो गए कॉपर Zn, स्टार्ट के हो गए साइंस टीचर. ओके. अब मैं नंबर देने वाला हूं. नंबर इन द सेंस नंबर 1, 2, here 3, and here's 4. Means copper 1, Zn2 plus, scandium 3 plus, titanium 4 plus. They all are colorless. C for colorless here. Color, I think you got this. These all color here. Okay, that actually I should write. What is the meaning of this C here? C for colorless. This is yellow color, violet color. Then here this is purple color here. Say first I'll write pink color. Then here purple color, blue color, green color. Okay. Now we'll see how to remember. Okay. For yellow color, we have Fe3 plus. This order actually I have to keep in mind, that is which I wrote first was okay. Yes. So now this is, we have titanium 3 plus and here copper 2 plus. See this how I am doing. For this colorless is very much okay, right? Now yellow color is Fe3 plus, titanium 3 plus is purple color, copper 2 plus is blue color. Now remaining is what to do here. So you have to keep in mind co-man, and here we'll write chroman, co-man. That is, here we have 2 plus 2 plus, and here there's 3 plus and 3 plus. And for green, we have Fenivo. That is 2, 2, 3. This way we can remember all colors of ions of first transition series. Right? So about color, we are done with this. As you know, we have not that much time to go through each and every topic. But important what I thought is color is how we can remember. कुछ अलग हम कैसे कर सकते हैं. So I tried this and I think आपको भी शायद अच्छा लगेगा कि C, Y, V, people, B, G. And this all इतना जल्दी से भी नहीं याद हो जाएगा. You have to just take care of. आप पहले ये याद रख लीजिएगा and then say this Fe3 plus and Ti3 plus and copper 2 plus. These are all are more important. Okay, other than these two.
Then in this topic, one very important thing we can discuss is that Bohr magneton and how to calculate that. So that easy we can do by finding it out that how many unpaired electrons are there, like in case of Fe2 plus. So Fe2 plus, as you know, that is for Fe it is 26, which is 3d6 and 4s2. So in case of Fe2 plus is 3d6, 4s0. So how many unpaired electrons are there? So if you'll see in this, say 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 6 electrons means 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many unpaired electrons are there? Unpaired electrons are 4. Means your Bohr magneton will be 4.9, 4.8. Exactly what I want to tell you. जल्दी से आंसर करना है ना, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना ही आप यहाँ पे देखेंगे. मींस मुझे ये बोलना है, जल्दी से आंसर करना है. देखिए 4 मिल रहा है तो 4 पॉइंट करोगे आप. सपोज इफ अगर चले निकल की बात कर रहे हैं, निकल 28 है हमारे पास. सपोज इफ इट इज, जल्दी हम करने जाएंगे 3d8 and 4s2, and if we are given with Ni plus 2, that means 3d8 and 4s0. So what will be the Bohr magneton? Magnetic moment क्या मिलेगा हमें? तो magnetic moment के लिए if we'll go for this, देख लीजिए क्या है आपका. 8 electrons are there. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many unpaired electrons are there? 2 unpaired electrons are there. So the Bohr magneton which we are going to get is 2 point whatever is given, 2.45. That we can calculate actually, but जल्दी आंसर करना है आपको. तो ये एक तरीका है कि जितने अनपेयर्ड होंगे वही पॉइंट आपको मिलने वाला है. कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, बहुत क्लोज भी रख देते हैं, बट सीईटी में इतना क्लोज नहीं रखने वाले हैं आपको कि 2.37 और 2.46 इस तरह से क्लोज नहीं रखते हैं. आपको जो सारे पॉइंट्स जो ऑप्शन दिए रहेंगे ना, उसमें आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जैसे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. It becomes very easy to give the answer. आप देख लोगे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतना पॉइंट. 2 है तो 2 पॉइंट. तो ये आप बहुत जल्दी कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूले से जा सकते हैं. दैट इज here we can write n plus 2. The number of unpaired electron you can put here, this 2 and 2 plus 2. This is known as effective Bohr magneton. So here we'll get this 2 into 4. Yes. 2.9. Near about approx. You'll get that. So this is the way to find out this effective Bohr magneton that we can calculate. Because actually why I'm doing this all, ये DNF जब मैंने start किया है, so exactly मुझे सिर्फ आपको ये बताना था, आप लोग ये अपने दिमाग में बात रखे कि जैसे यहाँ पे ये जो बातें आती हैं, जरूरी क्यों था ये, why this I gave here, because जो कंप्लीटली फील्ड है या हाफ फील्ड है वो मोर स्टेबल है, उनका इलेक्ट्रॉन निकाल लेना डिफिकल्ट होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर मोर स्टेबल. और ये मैंने इसलिए बोला था कि आपको जब लैंथेनॉइड कभी बोला जाए, लैंथेनॉइड्स का मतलब क्या है, तो जब कभी आपको लैंथेनॉइड्स बोला जाता है मींस आफ्टर लैंथेनम, मतलब नंबर स्टार्ट होगा, इसका नंबर 57 है, दिस 57, पर लैंथेनॉइड्स आपको बोलना पड़ेगा 58 to 71. अब बिल्कुल ध्यान रखना, गलती से भी ये लैंथेनम आपका 57 है पर वो एफ ब्लॉक नहीं है, वो डी ब्लॉक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है नंबर. तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इसलिए जो मुझे जरूरी लगा दैट आई स्टार्टेड हियर. फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा हम ये ऑक्सीडेशन नंबर वाली भी बात जरा कर ले, तो वो सारा थोड़ा सा आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इफ विल गो थ्रू आपको समझ में आएगा. फिर यहाँ पे जरा केमिकल ट्विंस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आपके एटॉमिक नंबर्स मालूम होने बहुत जरूरी है, कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पे एंड हो रहा है.
इसलिए हमने ये बात की थी। और ये सारा कलर वाली बातचीत करनी बहुत जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे कलर के बारे में बात होती है, इट इज कलरलेस और पिंक कलर और पर्पल कलर एंड ऑल दैट, यू नो। एंड देन बोर मैग्नेट्रॉन भी इस चैप्टर का बहुत खास टॉपिक है। तो ज्यादातर हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे अगर आप आ जाएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आ जाएं, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स means what I'm going to do, you know, I'm going to write here 6 to 7 complexes and then we'll discuss how to get hybridization quickly. jaldi se kaise nikal sakte hain, find out kar sakte hain. That is, suppose if we are given with NiCl4 2 minus, or suppose if next if I have NiCN4, that is also 2 minus here, or if we have copper ammonia which is 4 time and 2 plus. This time I'll write vertically, you know, so that will be better to write. Next we have here this, suppose if COF6 3 minus here, or if FeCO5, or next we have CO ammonia and here we have 6 time and 3 plus. Okay, how many are done? Okay, one more. That is NiCO4 time. Suppose if these all complexes are given, how to find out hybridization? So what you have to do is you should write sp3 in all the cases. Say sp3, I'll tell you actually how to get this. sp3 first we'll write and then we'll see. sp3 here, this is sp3. So here we have sp3 here, this is also sp3. Now my idea is what? If we have a strong field ligand, and how to get that strong field ligand, what do you have to keep in mind? It is called spectrochemical series given on page number 361. That is COCNEN ammonia. And then further we have EDTA and NCS. And then further we have water. This series we should know, that is spectrochemical series. Before water, the ligands which are given, these all are strong field ligand. So wherever you will see, you will find out strong field ligand. Means strong field ligand is here, like we have cyanide here, strong field, ammonia strong field. Then this is carbonyl, ammonia is there. Even we'll see that, I think, yeah, this is also strong field. Yeah, majority we have strong field ligand here. What to do in case of strong field ligand? In case of strong field ligand, we should start with D. These all are inner orbital complexes. That's why we'll start with D. We'll write here D. Okay. Now do one thing. Now you count the number of carbon. Not carbon. That coordination number 4. 4, count this, 3, 1, 4. Means this is done. Okay. Now again we have 4. So D should be there. That is 1, 2. This should be 2. Means you have to make it here 2. First I wrote sp3. First I wrote sp3 for all. Then what I did, in case of strong field, write D. Coordination number is 4. 4 number we need. 4 orbitals are required. This is compulsory. 1. This is 2. We need more 2. So you have to write 2. So DSP2. You will understand more when I'll go for next here. That is, here we get DSP2. Okay. Again, we'll see here. 4 are there. We require 4. 1 is already there. This 2. Again, we require 2.
विल राइट हियर 2, DSP2 एज आई सेड, और आगे जाएंगे शायद और समझ में आ जाए, विल सी। यहां पे देखते हैं, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। चलो इसका देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट। वीक फील्ड है, ओके, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 कैसे मिलेगा आपको, ये 1 है, यहां पे 3 है, 4 हो गए, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to introduce D2, so sp3D2। ओके, और आगे देखते हैं, चलो यहां देखते हैं, 5 दिख रहा है, 5 है, तो आपका 1 इज देयर, ये हो गया 2, और यहाँ के 3, 5, डन। ठीक है, शायद से ये लास्ट के दोनों हमें और कुछ अच्छा समझा सकेंगे। वी रिक्वायर 6 हियर, ठीक है, 6 चाहिए आपको। ये आपका P 3 से ज्यादा होता नहीं है, S आपका फिक्स होता है 1। अब जरा काउंट करके देखो, 3, 4, वी रिक्वायर 2, सो विल राइट हियर 2, टोटल नंबर शुड बी 6। तो 6 हो गए, अगर आप काउंट करके देखो सारे ऑर्बिटल, यू विल गेट 6। बट एज यू नो, आप कितने भी फॉर्मूले बना लो हमारे केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक, एक्सेप्शनल केसेस आते ही रहते हैं। तो व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर, दैट आई टेल यू। मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द वे आई एम डूइंग हियर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके हिसाब से यहाँ पे डी होना चाहिए था, पर ये गलत हो जाएगा, ये एक्सेप्शनल केस है, प्लीज कीप इन माइंड। मेरे हिसाब से ये DSP2 होना चाहिए था, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज देयर, बट दिस इज sp3। तो आप प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली ये सबके पीछे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इफ देर इज, अगर आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाई दे, तो आपको स्टार्ट करना होता है विथ DSP2। इट कैन बी D2sp3 और इट कैन बी DSP3। स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब D से ही स्टार्ट होगा, वो मुझे आपको याद दिलाना है। और मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D से स्टार्ट होगा, पर यहां पे एक्सेप्शनल केस आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है NiCO4, क्योंकि ये होना चाहिए था DSP2, पर ये होता है sp3। इस बात का आप जरा ध्यान रखना, तो आप जल्दी पहचान पाएंगे। तो ये एक बहुत खास टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन का, जो हमें याद रखना चाहिए। एंड आई नो आप एटॉमिक नंबर रूल में आप बहुत बेहतर करते होंगे, EAN। देन ऑल्सो एक बार हम, हमारे पास तो वैसे क्वेश्चन में भी हमने रखा है टॉपिक, तो हम तभी बात कर लेंगे। सो हाइब्रिडेशन करने के बाद अगर हम, चलिए ठीक से डिस्कस करते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सपोज इफ आई हैव PT और EN 2 time, and here we have NH3 and this water here. अगर आप लोग चैट में लिखना चाहें तो दैट विल बी मोर बेटर, यू नो, लाइक थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए तो अच्छा होगा। सो यू कैन राइट, आप चैट में मुझे बताइएगा, इफ नाउ हियर दिस इज 4+, सो व्हाट विल बी, सी डायरेक्टली सिर्फ पूरी तरह से मैं ही बात करते रहूंगा तो उससे ज्यादा बेहतर होगा कि अगर हम थोड़े से चैट में भी आपसे थोड़ी बातचीत हो, तो मुझे पता चले एग्जैक्टली है ना कैसे क्या। ठीक है, तो जरा आप बेटा ट्राई करिए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, या फिर मैं अगर बोलूं कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और आपका सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जरा जानना चाहता हूं कि आपको कुछ आइडिया है कि लाइक क्या होना चाहिए। प्रतीक ने आंसर दिया है 4, शायद से उन्होंने डायरेक्टली काउंट, जी बेटा मुझे इसी बात का डाउट था कि शायद से आप लोग डायरेक्टली काउंट कर लेते होंगे, बट प्रियांबी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उन्होंने 6 आंसर दिया है, बिकॉज शायद प्रियांबी जानती हैं कि EN जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड, और इसलिए आपको क्या याद रखना चाहिए, यू शुड कीप इन माइंड कि ये जब भी आपको EN दिखाई दे रहा हो तो इसको 2 को आपको 4 समझना होगा।
यू नो दिस, फिर भी मैं आपसे बात कर लेना चाहता हूं कि जो इथलीन डाइअमाइन का जो स्ट्रक्चर है, इन दिस स्ट्रक्चर 2 डोनर्स आर देयर। ये देखिए आपका इथलीन डाइअमाइन आ चुका है। सो नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस ऑल्सो डोनेट्स। तो आपका जो इन मतलब इथिलीन डाइअमाइन है, एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 डोनर हो जाएंगे। सो यू हैव टू कंसीडर हियर 4 और बाकी आपके 1 + 1, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगा। और प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर पहचानना बहुत जरूरी है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज यू शुड नो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ethylene, that is neutral molecule here, neutral molecule equals to +4, so you'll get here 4. So प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इसलिए मालूम होना चाहिए। ये क्यों जानना जरूरी था? जब आप EAN करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, तब आपको जरूरत पड़ती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, if we have cobalt and say here EN thrice and say 3+, how to find out EAN? मतलब आपको क्या मिलेगा EAN वैल्यू? Like as we have Z here, this X, this Y. Yes, atomic number, oxidation number, number of electrons accepted. Yes, Aryan, very correct, 36. So for cobalt it is 27 here. Oxidation number, if you'll see, 3, and this number of electrons accepted. This is very important here. How to remember this? How to get this actually? To get this, you should know coordination number. So coordination number 3 is given, means 6. So whatever coordination number is there into 2, you have to do, because each, one donor gives 2 electrons, so total 12 electrons. So here 12 electrons are accepted. So to calculate this EAN, that formula is Z minus X plus Y, that is 27 minus 3 plus 12, that is 36 here. Very correct. Yes. Yeah, many more gave answer. Jayesh, Vitthal and Santosh. Very good. Yeah, this only actually मुझे कहना ये था important, that is आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय मेटल। सो ये जो कुछ चीजें एक्चुअली मैं आपको ज्यादा कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यू हैव डन दिस ऑल, मैं सिर्फ आपका ब्रश अप कर रहा हूँ, जरा आपको याद दिला रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं। शायद से हो सकता है कहीं 1-2 पॉइंट में कुछ बेहतर बता सकूं, तो आप वो चीजें ले सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आप प्लीज याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ओके, अब इस टॉपिक में ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या याद रखना चाहेंगे? वो है आपका IUPAC, भी बहुत खास है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दे दूं कि AgCN twice and minus here, तो what will be the name of this? क्या होता है, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि मिस्टेक नहीं हो। What is the IUPAC name of this complex? जी हाँ, बिल्कुल, टाइप करने में थोड़ा सा कुछ समय लगता है, कुछ सेकंड चाहिए आपको, और फिर आप आंसर दे दोगे। जरा देख लें कि क्योंकि क्या होता है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका IUPAC, देन आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और EAN, और थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, दैट इज वो कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। डाइसाइनो अर्जेंटेट अथर्व, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और एक गलती हो गई बेटा, जरा लास्ट में आयन लिखना चाहिए था, जो कि गौरव ने आंसर दे दिया कि डाइसाइनो अर्जेंटेट 1 आयन। यस, यू आर राइट। सो मुझे आपको यही चीज याद दिलानी थी कि आप प्लीज याद रख लीजिएगा मैन 8 मीन्स ये 8 कब लाना है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा आंसर किया कि डाइसाइनो अर्जेंटेट, और आपने आंसर दिया 1,
पर आयन लिखना बहुत जरूरी है। और मैन 8 मतलब मैंने इसलिए लिखा है कि 8 कब लाना है, ये 8 आप कब इंट्रोड्यूस करोगे, जब आपके पास, ये देख लीजिए इसका मीनिंग है निगेटिव चार्ज। अगर आपको निगेटिव चार्ज नजर आता है कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं निगेटिव चार्ज है, या फिर अगर आपको दो मेटल दिखाई दे, जैसे एक मेटल दिख रहा है ना, एक और मेटल अगर आपको बाहर दिखाई दे, सपोज इफ इट इज, अगर यहां मैं चाहूं तो आई कैन डू इट, अगर मैं हटा दूं ना, इट्स डन। ये वही चीज है। तो आपको शायद बाहर अगर मेटल दिख रहा हो, अगर आपको मेटल नजर आए बाहर की तरफ ब्रैकेट के बाहर, तो ये जो चीजें होती हैं ना, इसको हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और जब कभी आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स देखेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जब एक बात हो गई तो छोटा सा एक और कर लें, फिर हम अगले टॉपिक पे आगे चले जाते हैं। सो दैट इज another example. I'm writing AU water and 2 time and we'll see this plus here. इसका IUPAC देख लेते हैं। Yes विठल, I have given this, मैंने यहाँ पे दिया है आपके लिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, अगर कोई मेटल नजर आए, कहां पे, ब्रैकेट के पहले कोई मेटल दिखाई दे, या आपको कोई निगेटिव चार्ज नजर आ जाए, ठीक है, ये मेटल या निगेटिव चार्ज नजर आ जाए, इसका मतलब होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा मैन 8। मैंने क्या लिखा हुआ है जरा देख लीजिए, मैन 8 आपको याद रखना होगा। तो अगर आपको इस तरह से दिख रहा है, 8 लाना जरूरी है। 8 मतलब अर्जेंटेट है ना। चलो ठीक है, जरा यहां पे देखते हैं इसमें क्या होगा। किसी ने आंसर दिया है? नहीं विठल, इस बार गलत हो गया बेटा, आप गलत हो चुका है आपका, और जयेश आपका भी गलत हो गया है, अथर्व आपने भी गलत कर दिया है, और ठीक है आर्यन सही किए, आर्यन ने बिल्कुल सही किया है। बाकी गौरव आपका भी गलत हो चुका है। जी जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्या है बेटा, क्या है मालूम है, समय हमारे पास पूरा सिलेबस बेटा मेरे को डिस्कस करना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरे को स्पीड जरा ज्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपसे बात करनी है मुझे। तो जैसे कि भी आर्यन ने आंसर किया है, गोल्ड दिया उन्होंने आंसर। बेटा गोल्ड इसलिए आएगा क्योंकि ये आप पहले पहचाना करो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस मतलब कैटायनिक है, तो कैटायनिक है मतलब 8 नहीं आएगा। 8 नहीं आएगा, इसका ओरिजिनल नाम लिखना पड़ेगा, यूजुअल नेम लिखना पड़ेगा। इसका यूजुअल नेम लिखना होगा डाई एक्वा। डाई एक्वा के बाद आप लिखोगे गोल्ड, आप ऑरेट नहीं लिखोगे, या ऑरम, ऑरियम, काफी कुछ लोगों ने लिखा था, वो सारे नहीं आएंगे। गोल्ड आएगा और 1 आएगा। 1 के बाद अगर आपने आयन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक पे IUPAC पे मैं आके इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता, जल्दबाजी में ऑरेट लिख देते हैं। बेटा आपको याद रखना है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तभी 8 लाना है। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आपको यह भी याद रखना है कि कॉपर को क्या बोलते हैं। आप जरा रिवीजन ले लेना, ये अपने पेज नंबर 347 एंड 348, बेटा दोनों पेज देखना बहुत जरूरी है। इस पेज पे आपको दिया हुआ है कि कॉपर को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग पता होनी चाहिए। कॉपर को क्यूप्रेट बोलेंगे, क्यूप्रेट, या फिर आपका फेरेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, बाकी इजी है, एल्यूमिनेट, कोबाल्टेट, जिंकेट, निकलेट। जहां ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो है क्यूप्रेट, फेरेट, अर्जेंटेट, ऑरेट। बाकी इनमें तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो जरा आप IUPAC का ध्यान रखना, और EAN भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक सब धीरे धीरे में आगे जाना होगा। अब हम धीरे धीरे बेटा हैलोजन डेरिवेटिव की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। या चलिए उसके वो जानने के पहले बेटा एक चीज और मुझे बतानी पड़ेगी कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेबिलिटी, बेटा थोड़ा नेटवर्क के कुछ इश्यू हो जाते हैं बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन पे शायद आपको मैं जो शेयर कर रहा हूं नहीं दिख रहा होगा, पर जस्ट वेट फॉर इट, मिल जाएगा आपको।
मुझे अभी बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा यहाँ देखते हैं कि कुछ खास बात क्या कर सकते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मैं दो कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, जरा आप ट्राई करिए। सपोज इफ आई हैव कॉपर एंड दिस NH3 and 4 times this 2 plus, and another is cadmium we have, and this same ligand I am writing here, this 2 plus. अगर ये दो कॉम्प्लेक्सेस है नंबर 1 and 2, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर ये पता लगाना हो तो बेटा जरा मुझे पहले आंसर मिले आपकी तरफ से, फिर मैं आपको जैसे कि शायद से विठल ने पहले एक आंसर दिया, नंबर 1 दिया है ना? जी जी बिल्कुल सही। आर्यन आपका भी सही है। जयेश बिल्कुल, वाह बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता था ये। बेटा इसको बोलते हैं इरविंग विलियम ऑर्डर। इरविंग विलियम ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपके पेज नंबर 367 पे है ये। बेटा इरविंग विलियम ऑर्डर में कैसे आप याद रखेंगे, देखिए इसलिए हमने बनाया है कि अगर कुछ लोग बेटा जैसे कि वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, पर इंडियंस हैं बेटा हम लोग, हर जगह का देखिए मेरे भी टोन कुछ अलग लग रही होगी आपको। आप जानते हैं सबकी टोन में थोड़ा सा बोलने में, एसेंट में थोड़ा डिफरेंस रहता है। अगर खूनी बोलना है तो अगर साउथ के लोग हैं तो कैसे बोलेंगे उसको? खूनी नहीं बोल पाएंगे, खा को कभी भी क प्रोनाउंस करते हैं। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कूनी को, कूनी, कूनी मतलब मर्डर। कूनी को फेंको, खूनी मर्डर को फेंको, कूनी को फेंको मंदिर के सीढ़ी पे। ऊपर वाला सजा देगा, भगवान उसको सजा देंगे। हमने याद रखने की कोशिश की है, कूनी को फेंको मंदिर के सीढ़ी पे। तो ये आपका इरविंग विलियम ऑर्डर है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्सेस आप देख रहे हैं ना, कॉपर का बना हुआ कॉम्प्लेक्स या निकल कोबाल्ट, इनके कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। और इसके साथ साथ कभी कभी आपका अगर लिगेंड बदल दिया जाए तब क्या होगा? मीन सपोज इफ यू आर गिवन विथ, अगर आपको दिया है कि कॉपर है और साइनाइड के साथ लाइक 4 this we have 2 minus, and now here another I'm writing that is copper, and say if I'll write CO 4 times, 2 plus। अब ये अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा फिर, मतलब मोर स्टेबल? सेकंड, यस अथर्वा यू आर राइट, और विठल और बाकी लोग बहुत अच्छा बेटा, तो आपने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, क्योंकि बेटा वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हो जाएगा ना ये। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर रहा आपका, ये आपने आंसर दिया यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए हमारी बात हो चुकी है। ये आपका COCN EN अमोनिया एंड दिस, इसके बाद जैसे मैंने बताया था EDTA एंड दिस NCS। आई गेव हियर, आई थिंक एक बार हमने यहाँ पे कुछ लिखा भी था। यस राइट, इट वाज देयर। और इसके बाद आपका वाटर आ जाएगा, तो वाटर आ जाने के बाद आपको समझ जाइए वहां से वीक फील्ड स्टार्ट हो जाता है, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। हाँ, अब मैं चाहता था कि आपसे मैं बात करूं, जरा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरा हम लोग देखना चाहते हैं। तो मुझे आपसे बात करनी है कि अगर आपके पास इथेन है एंड यू आर रिएक्टिंग इट विथ I2 एंड वी गेट दिस ethyl iodide and plus HI. So this reaction, you know that this is a reversible reaction. So with this I2, some reagent is added. So that you should keep in mind. That is iodic acid, HiO3. Other than iodic acid, it can be like nitric acid or HGO. This you should keep in mind, because only this alkane and this halogen
gives reversible reaction to make it irreversible. These are the three reagents which are added that you should keep in mind. And the next topic which I'm going to write is, you know that very well, that is Finkelstein reaction. In this very important, that is the reagent which is used is sodium iodide. And similarly, if we have a Schwarz reaction, so in this, the very important is generally we see this AgF. Many more, SbF3 is also there. Okay. Now, after this, important which I want to discuss here is, like, suppose if I have alkyl halide, and if they are reacted with, say, if we have we'll see. Okay. Suppose if I have here KOH, alcoholic, okay, or if we have KOH, which is aqueous, difference we have to see. Like if we are given with KCN, and then we have AgCN here. In between some network issue we are getting here. Sorry. For this alcoholic KOH, yes, what do we get in this case? Yes, Anuja, that is elimination reaction, and that aqueous KOH is substitution. Okay, substitution will do elimination. Yes, you are right. And actually, these two you gave correct answer. That is here we get say alkene we get here in this we get alkene. That is elimination reaction. Very correct here. This you can say hydrolysis, alkaline hydrolysis also, that is we get ROH. And what about this CN now? Yes, so yeah, you were right, Priyambi. That is here RCN, and here we get RNC. Very correct. आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कार्बाइल अमाइन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा. And then further, I just want to give here, suppose if N is given here, and next I'll write here, say Mg. Yeah, isocyanide, yes, you're right. Shreya, you gave isocyanide, correct answer. Arya Nandu, yes, you are right. Word synthesis, that is words means you'll get RR. And here this for Mg, you know very well, that is Grignard's reagent RMGX. Yeah, just I wanted to confirm, you know, that just like, do you remember that AgCN आपको याद है कि नहीं? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है कि आपने बहुत बढ़िया बताया कि यहाँ पे आइसोसाइनेट बनने वाला है, और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि अल्कीन बनेगा. बस ये थोड़ा सा आपसे कंफर्म करना था. ओके, सो ठीक है, कंफर्मेशन मींस आई एम ओके विद दिस. मुझे अच्छा लगा कि आप बढ़िया कर रहे हैं. तो बेटा अब इसी तरह से मैं थोड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जरा लेके जाना चाहता हूं. अब आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं कि सपोज इफ it is given the complex in the sense the organic compound is like this. Here CH2OH, and here we have this H. अब हमें पता लगाना है कि ये RS कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सा है, तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए. ठीक है, तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. आप दो चीजें बता सकते हैं. आप चाहे तो मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, या फिर डेक्स्ट्रो है या लेवो रोटेटरी, वो आपको बताना होगा. आप सभी लोग ने एस आंसर दिया हुआ है.
बेटा ये सभी लोग, ढेर सारे लोगों का एस मिल रहा है यहाँ पे, जयेश, आदित्य और गौरव, काफी लोगों ने आंसर किया है, और विठल वेतल जो है उन्होंने आर आंसर किया है। तो अब ढेर सारे लोगों को बड़ा एस मिल रहा है और एक जन का आर मिला है, तो अब हम इसमें से किसको फिर सिलेक्ट करेंगे? मेजोरिटी ने तो एस आंसर कर दिया। शायद से ये टॉपिक बेटा मैं इसलिए लेना चाह रहा था कि काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मुझे सिखाना जरा जरूरी था, कि इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पे लिया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बेटा क्या है। सबसे पहले तो ये पहचानना होता है बेटा ऐसे बल्कियर ग्रुप पे कौन है, सबसे बड़ा ग्रुप ये है और क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर नंबर 1 ये आपका ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 यहाँ पे है। और आप लोग ने भी ऐसा ही किया होगा 100%, मुझे पता है कि आपने 1 2 3 इस तरह से ट्राई किया होगा और आपको लगा होगा कि ये, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आपने देखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, या फिर आप ये देख रहे होंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, और इसलिए आपने बोला होगा कि सर ये तो लेवो रोटेटरी है, इसका मतलब कि ये तो एस आना चाहिए, पर आई एम वेरी सॉरी ये आंसर गलत है जी। अभी आर वाले आंसर मिले हैं, हरेश भी दे रहे हैं, और एस टी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म उनका नाम। तो बेटा ये आर क्यों मिलेगा, उसके लिए आपको क्या याद रखना होगा कि जो आपका ये फोर्थ है बेटा, ये जो बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी जिसको मिल रही है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल में होगा, मींस अगर ये आपको लेफ्ट या राइट में दिखाई देगा, नंबर 4 बेटा फोर्थ वाला, प्लीज कीप इन माइंड, फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल में अगर दिख रहा है, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा उसका रिवर्स करना पड़ेगा। मींस जो भी अगर आपको एस मिल रहा है पर आपका फोर्थ स्ट्रेट है, सीधा दिख रहा है, सीधा मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है 4, अगर आपको लेफ्ट या राइट में दिख रहा है, तो आपका जो आंसर आया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका एक्चुअल आंसर होगा, द एक्चुअल आंसर फॉर दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ऐसा होता है। अगर आपको डिटेल्स में अगर आप देखना चाहें तो मैं भी वो भी सिखा सकता हूं, पर वो थोड़ा सा और परेशान कर सकता है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं बेटा, सिखा देता हूं। इसमें अगर आप बेटा तरीका जानना चाहते हैं सर ऐसा क्यों हो गया, तो क्या करना पड़ता है बेटा, ये 4 में से ना आपको क्या करना पड़ेगा, एक जैसे जो आपका नंबर 4 है ना, उसको टॉप या बॉटम में लाना पड़ता है। नंबर 4 को आप ऊपर या नीचे लिख दीजिए। जैसे सपोज इफ मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे एच, ओके आई मेक इट, मैं फिर से आपके बना दूंगा, मैं फिर से आपको समझाने के लिए बना रहा हूं बेटा। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो नंबर 4 है ना, उसको ऊपर या नीचे, टॉप या बॉटम में लाना पड़ता है। तो कहीं भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ नीचे की तरफ रख देता हूं, ऊपर नहीं रखा मैंने। अब आउट ऑफ 3 रिमेनिंग 3 जो 3 बचे हुए हैं ना, उसको आपको फिक्स करना पड़ता है। कोई एक फिक्स करना पड़ेगा, कोई भी आप एक फिक्स कर लीजिए। सपोज इफ, चलिए मैंने COOH को फिक्स कर लिया, यहाँ पे मैं कोई भी फिक्स कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अब बाकी जो है उनको रोटेट करना पड़ेगा। आपने H को आप किधर लेके गए हैं, आप H को राइट की तरफ लेके गए हैं, राइट, तो बाकी लोग भी राइट में रोटेट करेंगे, बाकी लोग राइट में रोटेट करेंगे, मतलब आपका CH2OH यहां पे आ जाएगा और आपका CHO लेफ्ट में आने वाला है। बेटा ध्यान से जरा देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों कर दूंगा, मैं टॉप में, मैं बॉटम में लाया ना मैंने, मैं टॉप पे भी लेके जाऊंगा, बट यू जस्ट से दिस कि मैंने नंबर 4 को नीचे लाया है। क्या देखा बेटा आपने, क्या ध्यान दिया यहाँ पे, आपने देखा कि हमने बॉटम पे रख दिया, ओके, एक हमने फिक्स कर लिया है, तो बाकी लोगों को रोटेट करना था। तो किसको कहां रोटेट किया, आपका नंबर 3 देखिए यहां चला जाएगा और आपका नंबर 2 फिर रोटेट होके इधर आ जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं, नाउ विल सी, अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 आपका यहाँ पे है, नंबर 2 इज दिस, और नंबर 3 आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जरा घुमा के देखिए 1 2 3, देखिए आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। देखिए ये शायद से मुझे जरा रब करना होगा, हाँ मैं आपको अभी दिखा देता हूं कैसे मिल रहा है। ये देख लीजिए 1 2 3 राइट साइड मिल रहा है ना। लेकिन बेटा ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, मुझे लग रहा है कि शायद से वो बेहतर था कि आप ये देख लें कि आपका नंबर 4 जो है, जो लीस्ट जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो कौन सी जगह पे है, वो देखने से जल्दी आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा आप चाहते होंगे सर जरा दूसरा एक और करके दिखाइए, मतलब करके भी इसमें ही, मींस हम ये करना चाहते हैं कि चलिए मैंने H को ऊपर रख लिया और इस बार मैं यहां पे फिक्स कर रहा हूं CH2OH, पर आप देख रहे हैं H कहां जा रहा है, H ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब राइट वाइज घूम रहा है, तो राइट में आपको घुमाना पड़ेगा, घुमा देना इन द सेंस
CHO आपका यहां आ जाएगा और COOH इधर आ जाएगा। मीन्स सारी चीजें ऐसे रोटेट हो जाएंगी सब कुछ। तो रोटेट करने पे देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको यहां रोटेट कर दिया, यहां का वहां रोटेट कर दिया। अब जरा नंबर कर दे बेटा, मैं नंबर भी सिखाऊंगा आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीजें भी आप देख लेना। देखिए हाँ जी, नंबर 1 आपका यहां रहा बेटा, नंबर 2 आपका देखिए यहां पे है, नंबर 3 यहां पे आ गया है। जरा 1 2 3 आप रोटेट करके देख लीजिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों भी केसेस में आपके नंबर 1 केस आप ले लीजिए, नंबर 2 देख लीजिए, दोनों में भी राइट साइड में ही रोटेट हो रहा है। तो या तो आप ये तरीका करें, लेकिन बेटा ये तरीका करने में आपका टाइम खराब होगा, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप याद रखें। चलिए एक काम करते हैं बेटा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लैक्टिक एसिड के बारे में बात करते हैं। इफ आई हैव OH हियर और यहाँ पे मेरे पास H है, दिस वी हैव CH3 हियर एंड यहाँ पे COOH। चलिए इसका देखते हैं बेटा क्या मिलेगा, ये डी लैक्टिक एसिड है या फिर एल लैक्टिक एसिड है। यस काफी अच्छा आंसर है, आर्यन सबसे पहले आंसर कर चुके हैं, पूजा ने आंसर किया है, गौरव सबने बहुत बढ़िया बेटा, प्रियांशु आप लोग समझ चुके हैं, मींस मैं आगे जा सकता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है यार, बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। ये रहा आपका नंबर 1, ये है आपका नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3 है। तो आप रोटेट करने जा रहे हैं, आप रोटेट कर रहे हैं 1 2 3 और आपको राइट साइड में रोटेट हो रहा है, मतलब आर कॉन्फिगरेशन है। तो आर कॉन्फिगरेशन है मतलब ये डी लैक्टिक एसिड है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और इसलिए आपने इस बार चेंज नहीं किया, इसको जैसा है वही रखा आपने, क्योंकि आपका जो नंबर 4 है वो टॉप में है। अगर वो टॉप में या बॉटम में रहेगा, जो आंसर आए वही आंसर होगा। जी हाँ बिल्कुल सही। अब बेटा हमारी कोशिश बहुत काम आ गई, मतलब आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक से हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सैंडमेज रिएक्शन। सैंडमेज बेटा, सैंडमेज में खास बात ये याद रखनी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि aniline is when reacted with this sodium nitride and HCl at 0 to 5 degree we can say here. So benzene diazonium chloride forms here this plus and minus, और उसके बाद जब हम करते हैं तो हम लिखते हैं CuCl HCl, ओके। और अनदर वी हैव CuBr HBr, ठीक है ना। या फिर एक और आप आगे जा सकते हैं, दैट इज आप CuCN HCN भी कर सकते हैं। एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, हमें यहां मिलता है आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका है यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, एंड हियर वी हैव दिस बेंजोनाइट्राइल। लेकिन बेटा आपको खास बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि एक रिएक्शन और है, यहाँ पे आयोडाइड आपका नहीं बनेगा। जैसे कि जब आप ये रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आप जो ये ऐड कर रहे हैं CuCl CuBr, वो नहीं चलेगा आयोडीन में। व्हाट यू हैव टू डू इज, उसके लिए आपको बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड याद रखना होगा कि उसका रिएक्शन करना पड़ता है विद Ki और हीट करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है आइडोबेंजीन है ना, और प्लस आपको मिलने वाला है KCl प्लस दिस नाइट्रोजन गैस। बेटा मुझे ये बोलना है कि ये रिएक्शन बेटा सैंडमेयर में नहीं आता, इसका ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन इस तरह से देखा था कि क्या ये सैंडमेयर रिएक्शन है, नो, दिस डू नॉट बिलोंग टू बेटा, ओके सिंगल में लिख देते, डज नॉट बिलोंग टू दिस सैंडमेयर रिएक्शन। और हाँ, जब बेटा इसकी जब सैंडमेयर का नाम आ गया तो फिर गेटरमैन कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं। गेटरमैन में क्या याद रखना आपको, गेटरमैन जो रिएक्शन उसमें अगर आगे बढ़ना है, अगर मैं आगे रिएक्शन जो कर रहा हूँ ये दोनों, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे CuHCl होगा एंड यू कैन राइट, आप इस तरह से CuHBr कर सकते हैं। तो ये दोनों जो रिएक्शन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, विच आई एम राइटिंग हियर एक्चुअली, दिस टू, ये दोनों आपके गेटरमैन रिएक्शन है, जो कि बेहतर नहीं है, अच्छे नहीं है। मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ा ईल्ड कम मिलता है और आपको सैंडमेयर में ज्यादा ईल्ड मिलता है। तो दोनों में जो फर्क है, जरा बेटा क्या होता है, जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं
कि क्या CuCl, CuBr और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हल्का सा बेटा देखो प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से फिर गलती हो जाती है कि क्या ये सैंडमेयर था या गैटरमैन रिएक्शन था। ठीक है बेटा, इसी तरह से जो जो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं जरा आपका ब्रशअप कर रहा हूँ यहाँ पे कि चीजें आपको याद आ रही कि नहीं। उसी तरह से मैं और आगे अगर जाऊं तो अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें यहाँ पे, तो मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टेबल बना के मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब ये ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि K2Cr2O7 और आपका सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, और दूसरा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉपर से रिएक्शन करते हैं, PCC के साथ भी रिएक्शन करते हैं। बट एक्चुअली बेटा मैं जरा PCC पहले रखना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम PCC रखने वाले हैं, यहाँ कॉपर रख देंगे एंड हियर विल गो फॉर CrO3। और जो आपका कॉपर है ना, वो कॉपर दैट इज हीटेड एट 573 केल्विन। ठीक है, तो मुझे आपसे ये बात करनी थी कि ये देखिए कितनी मदद करेगा हम लोग की, जब हम बेटा ये लाइन कुछ ज्यादा ही हमने ड्रॉ कर दिया, वापस आ रहे हैं। हाँ जी, यस बराबर, ठीक है। हमें बात करनी है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यहाँ आपको अल्डिहाइड मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ भी आपको अल्डिहाइड मिलने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आपको एसिड दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल आपके लिए बहुत इजी है, सेकेंडरी अल्कोहल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे आप सारे जगह पे कीटोन 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 याद रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, सब जगह कीटोन मिल जाता है आपको। और अगर टर्शरी की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कीन बन जाता है यहाँ पे, और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीटोन बन जाता है। तो बेटा ये टेबल आपकी काफी मदद करेगा ऑक्सीडेशन करते समय। आपको ध्यान रखना होगा कि सेकेंडरी तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सेकेंडरी में सारे जगह पे आपको कीटोन 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 नजर आ रहे हैं। टर्शरी में आप याद रखिएगा कि ये दो जगह पे जरा कोई रिएक्शन नहीं हो रहे, पर कॉपर के समय अल्कीन बनेगा, और ये एक स्टेप और आगे जाएगा जहां कीटोन बनने वाला है। तो ये PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और आपका कॉपर, जरा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने हैं। और डिहाइड्रेशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसमें कि अगर हम लोग ये देखें कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एल्यूमिना अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे 623 केल्विन और 523 केल्विन एंड 423 केल्विन। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, सो जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल से याद रख सकते हैं कि पा मतलब हमारे पेरेंट्स है जो कि चाहते हैं कि हमारा 95% 12th में आ जाए, जो कि रिजल्ट आपका आ चुका है। जैसे कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि 95% हर पेरेंट्स चाहता है, स्टूडेंट भी सोचते हैं मेरा 95 आ जाए, बहुत बार लोगों का 60% आ जाता है। और टीचर जो है, देखिए P फॉर पेरेंट्स है, S फॉर स्टूडेंट है, T फॉर टीचर है, तो टीचर बोल रहे हैं नहीं 20% ही प्रैक्टिकल मिलेगा। तो परसेंटेज की जरा बात चल रही है, यहाँ टेम्परेचर देख लेते हैं, 443 केल्विन, दिस इज आप 373 केल्विन, दिस 363 केल्विन। बेटा थोड़ा याद रखना चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट चीज है, मालूम होना जरूरी है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर चुके, धीरे धीरे हमें फिनॉल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। फिनॉल जिसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, फिनॉल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। और कार्बोलिक एसिड आ गया तो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि कैसे बनेगा पिक्रिक एसिड एंड व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, और क्या पिक्रिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है कि नहीं, वो पूछा जाता है। तो बेटा इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप बिल्कुल नहीं है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला इज दिस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका नाइट्रेशन करना पड़ेगा विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड concentrated sulfuric acid together, and this combo
दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो बेटा कभी कभी ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर कहीं क्वेश्चन में आता है कोई नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों के कॉम्बो के बारे में बात हो रहा है। पर कार्बोलिक एसिड से बेटा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सैलिसिलिक एसिड कैसे बना दोगे, हाउ यू विल गेट दिस सैलिसिलिक एसिड, कैसे बन जाता है। मतलब हमें सैलिसिलिक एसिड नहीं दिया होगा, हम लोग को तो दिया होगा कि आपका कार्बोलिक एसिड का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दिया और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, और नेक्स्ट यहीं पे आपको H+ भी दिया रहेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या बनने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म हियर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फिनॉल का रिएक्शन, इफ फिनॉल इज रिएक्टेड विथ NaOH और एंड देन CO2 एंड एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो बातें हो सकती हैं, यहाँ पे H+ भी हो सकता है, OH- भी हो सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, H+ इज बेटर। तो आपको याद रखना है कि सैलिसिलिक एसिड बनने वाला है, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दैट इज यहाँ पे OH है और ये आपका COOH। तो काफी टाइम ये भी आता है कि सैलिसिलिक एसिड से और क्या बना सकते हैं, तो इसका अगर आप एसिटाइलेशन अगर कर देते हैं तो एसिटाइलेशन करने पे एस्पिरिन बन जाता है, वो भी आपको मालूम रखना जरूरी होगा, जो कि नॉन नार्कोटिक्स है और एनाल्जेसिक है। तो यहाँ पे आ जाता है OCOCH3 एंड COOH विच इज एस्पिरिन विच इज पेनकिलर। और अगर आपके कार्बोलिक एसिड से ये पूछा जाए कि सैलिसिलडिहाइड कैसे बन जाएगा, लाइक इफ यू आर गिवन विद दिस, आपके सामने ऐसे फिनॉल दिया हुआ है और मान लीजिए सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्लोरोफॉर्म इज गिवन एंड दिस NaOH भी लिखा हुआ है और गिवन A, और आपको पता भी होगा कि ये जल्दी से आप पहचान सकते हो NaOH B दिया हुआ है और फाइनली या गिवन विद H+ और आपको C पूछा जा रहा है, तो आपको ये सारे रिएक्टेंट देख के जल्दी से पहचान लेना होगा कि ये सैलिसिलडिहाइड बनने वाला है एंड वो आपका रीमाटाइमन रिएक्शन है। तो ये जरा कुछ चीजें बड़ा याद भी रखनी पड़ती हैं, रीमाटाइमन रिएक्शन। तो जो थोड़ी जरूरी चीजें बड़ा वही डिस्कस कर रहे हैं। फिनॉल में एक और खास बात आ जाता है, कभी कभी मैंने देखा है कि इस तरह से क्वेश्चंस काफी आते हैं फिनॉल के ऊपर, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, तो काफी लोगों को परेशानी हो जाती है, याद नहीं आता है। पर बेटा आपको याद रखना होगा कि बेंजोक्विनोन, ये नाम सुनने के बाद काफी लोगों को लगता है बेंजोक्विनोन कैसा होता है, बेंजोक्विनोन। तो बेटा ये आपका बेंजोक्विनोन है, ये डाइकीटोन बोलते हैं इसको, ये इसका जरा प्लीज आप ध्यान रखिएगा। ये सब सारी बातचीत हमारी पेज नंबर 433 की बातचीत चल रही है। तो ये फिनॉल के बारे में थोड़ी हमने बात कर ली। चलिए बेटा आप आपसे काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने का वक्त आ चुका है, जरा हम लोग ईथर की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप आंसर कैसे कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं CH3O एंड आई हैव CH, not CH, if I have this CH3 here and this CH3 and CH3, अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो मैं लिख दूं कि टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। बस आपको बेटा मुझे ये बताना होगा कि विच अल्काइल हैलाइड कैन गिव दिस, जैसे कौन सा अल्काइल हैलाइड ये दे सकता है, क्या आपको आइडिया है कि इसमें से विच अल्काइल हैलाइड विल गिव दिस, इसका नाम बेटा। गौरव इन्होंने लिखा है कि 3 डिग्री, जी बेटा बिल्कुल सही, लेकिन वो क्या चीज है बेटा, जिसे मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूं कि अच्छा आपने लिखा है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल गिव दिस, यस प्रतीक आप बोलना चाहते हैं कि 3 डिग्री सेम 3 डिग्री अल्कोहल, अच्छा 3 डिग्री अल्कोहल, नहीं नहीं बेटा अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अनुजा बेटा हमने अल्काइल हैलाइड बोला हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली चलिए मैं लिख देता हूं कि बेटा ये विलियमसन चल रहा है, तो अल्काइल हैलाइड मतलब विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात हो रही है। तो इसमें बेटा चलिए मैं आपको और बताता हूं कि विलियम कहना चाहते हैं कि मेरे लड़के को अल्कोहल मत देना, नो अल्कोहल इज नॉट अलाउड। बेटा आप यहां अल्कोहल नहीं ले सकते, अल्कोहल नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर मैंने आपको अल्काइल हैलाइड बोला है
तो अल्कोहल का आंसर आप नहीं कर सकते हैं। जबकि मैंने आपको अल्काइल हैलाइड पूछा था वैसे, तो मैंने क्या बोला, विलियम बोल रहे हैं मेरे लड़के को अल्कोहल मत देना, इस बात का ध्यान रखना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं, नो। जी बेटा मैं वही जानना चाहता था, अल्काइल हैलाइड। बेटा मेरा कहने का मतलब है, क्या आप नाम बता सकते हैं कि विच अल्काइल हैलाइड? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यू बेटा, जरा और देखते हैं, शायद से स्क्रीन पे वो चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। So your screen is not visible. You have to share your screen. आर्यन आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने मिथाइल हैलाइड बोला है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब बेटा हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्लीज याद रख लीजिए। अभी हम लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं, तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस बात का बहुत ध्यान रखना है बेटा, ये ज्यादातर सीईटी में देखने मिलता है। हम लोग वो टॉपिक सारे, देखो बेटा क्या होता है मालूम है, सीईटी में केमिस्ट्री ऐसे बहुत ज्यादा टफ तो नहीं आता है, पर ऑर्गेनिक में बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, गलतियां कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बहुत टफ नहीं आता है, पर गलती ना हो बेटा उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो आपको याद रखना होगा बेटा इधर, या तो चलिए मैं आपको एक और सिंपल सा तरीका सिखाता हूं। आप ऐसा करिए, आप ऐसे याद रखिए, मैंने बोला है कि विलियम है और तो विलियम का लड़का है, ठीक है। अच्छा, अगर ये विलियम का लड़का है तो माँ होगी, और माँ को हम क्या बोलेंगे मराठी में? आई बोलेंगे। तो उसको बेटा अगर एक लेटर में लिखना हो तो क्या कर देते हैं, आई कर देंगे, आई। तो मैं ऐसे आपको एक हिंट देना चाहता हूं, आप ऐसा करिए बेटा, ऐसा कट कर दो। अब विलियम के पास दो लड़के हैं बेटा, एक लेफ्ट में एक लड़का दिखाई दे रहा है, राइट में लड़का दिख रहा है। तो जो लेफ्ट वाला छोटा लड़का है, छोटे को आई दे दीजिए, छोटे को माँ मिल जाएगी, और बड़े वाले को ना। ना मतलब नहीं, है ना। हमेशा ऑलवेज छोटे वाले के साथ माँ होती है, ऐसा याद रख लीजिए। आपका आंसर हमेशा राइट होगा, कभी रॉन्ग होगा ही नहीं। जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि छोटे वाले को माँ मिल गई, ये देख लीजिए, और बड़े वाले को नहीं। ये इसलिए याद रखना है बेटा, अगर इसमें आप जरा सा भी गड़बड़ी कर देते हैं तो नहीं बनेगा, फिर गलत हो जाएगा। देखिए ये कॉम्बो लेना बहुत जरूरी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसके लिए आप ऐसा भी करें कि जो ये विलियम और सन की बात हो रही थी, तो विलियम ने बोला था कि मेरे लड़के को अल्कोहल मत देना, और इस बात को सुन के लड़के को आया था रोना। तो लड़के को रोना आया, तो हमने एक मना किया, मना कर रहे, देखो मना ना बोल रहे, नहीं मना कर रहे, रो ना मत यार, दैट इज आर। तो जब आप रोना मत यार कर लिखते हो ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो आर दिख रहे हैं, एक आर आपको यहां दिख रहा है, दूसरा आर यहां दिख रहा है, पर ये जो आपका आर है वो कभी भी प्राइमरी होना चाहिए। दिस शुड बी प्राइमरी 1 डिग्री। आप जानते भी होंगे बेटा, ये आपको पेज नंबर 438 पे दिया हुआ है, पेज 438 पे लिमिटेशन ऑफ विलियमसन में शो किया हुआ है। बता हमारा जो आंसर है, वो आंसर हमारा आने वाला था CS3I। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर अगर टर्शरी ले ले तो क्या होगा, बेटा टर्शरी लेने पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, जरा देखिए, ये CS3 है, यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे अगर आपने आई रख दिया, और ये सपोज इफ यू हैव CS3ONA हियर, और आप हीट कर रहे हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, आयोडीन पुल्स इलेक्ट्रॉन, so this carbon becomes the deficient here. Now here we have methoxide nucleophile. This nucleophile donates electron to carbon but cannot want to donate. Why it cannot donate? Because of steric hindrance. Means methoxide ion, that nucleophile cannot donate electron to carbocation, tertiary carbocation. That is all because of steric hindrance.
लेकिन वो घर से निकला है कसम खा के कि आज मैं इलेक्ट्रॉन दे के ही आऊंगा, है ना। मेरे पड़ोस में एक गरीबी आ गई है किसी के पास, कौन है वो, कार्बोकेटाइन। तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन देने गया था पर वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया, इसलिए वो क्या करता है, ये जो आपका CH3O- है, बोलता है आज मैं इलेक्ट्रॉन दे के ही घर लौटूंगा। तो देखिए बेटा उस क्या किसको इलेक्ट्रॉन देता है वो। मुझे ये कहना है कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता था कार्बन को पर नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया टू दिस हाइड्रोजन। सो व्हाट विल हैपन विद दिस इलेक्ट्रॉन, ये चले जाएगा देखिए कार्बन के पास। कार्बन इन द सेंस एक्चुअली बेटा मुझे वहां से शिफ्ट ही कर देना चाहिए, विल बी बेटर, ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं इस तरह से शो करूं, ये ज्यादा बेहतर होगा टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा शायद से और अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं मैं। ये आपका CH2 है, यहाँ पे H है, ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। मीन्स आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट CH3 और यहाँ पे C, यहाँ मिलेगा डबल बॉन्ड CH2 और ये मिल जाएगा आपको CH3, मतलब ईथर नहीं मिलेगा आपको, और CH3OH मिल जाएगा और आपको प्लस NaI मिल जाएगा। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, इस बात का ध्यान रखना जरा, आप अल्कीन बन जाता है, इसका नाम है आइसोब्यूटाइलीन। तो ये लिमिटेशन ऑफ विलियमसन जरा थोड़ा आपसे बात करना था। चलिए कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि और बहुत सारी टॉपिक है जिसपे हमें बात करनी है। तो सपोज इफ अगर हमारे पास ये ईथर दिया हुआ है जो कि आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर है, एंड वी वांट टू रिएक्ट इट विद HI, एंड हियर वी हैव कोल्ड, व्हिच अल्कोहल विल फॉर्म, जरा बेटा कंफर्म कर दीजिए कौन सा अल्कोहल बनने वाला है। यस 2 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही आंसर है। काफी लोगों ने आंसर आर्यन भी दिए हैं, विठल दिए हैं, हरेश उसके पहले भी उन्होंने आंसर दिया था, वेरी गुड। सो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जैसे कि आपने 2 डिग्री बोल दिया था, तो 2 डिग्री में वी कैन राइट इट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा हम लोग को, और प्लस CH3I। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आपने याद रखा हुआ है, वेरी नाइस। तो अगर बेटा अगर मान लीजिए हम लोग अब लिखने जा रहे हैं CH3 thrice C and O, C2H5 is when reacted with HI. Again, this cold condition is there. So which alcohol we are going to get here? Yes, प्राइमरी मिलने वाला है हम लोग को। ये अथर्व और सब लोग ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ का नॉलेज आपको बहुत अच्छा, बस यही बेटा मुझे कंफर्म करना था, बिल्कुल सही दे रहे हैं। 1 डिग्री बनने वाला है, मतलब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और बिल्कुल सही है। और आपका ये CH3 thrice CI, बेटा यहाँ हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो जनरली हमने देखा है कि जो बड़ा ग्रुप होता है उसको अल्कोहल मिल जाता है, बट इन केस ऑफ टर्शरी बेटा जहां भी टर्शरी आएगा वहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो टर्शरी वाले ईथर में टर्शरी है ना, यहाँ पे जरा ध्यान रखना आप कि ये बातें। बहुत बढ़िया आंसर किया आपने, तो ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, ये जो खास खास बातें थी वो हमने देख ली हैं। तो अब हम धीरे धीरे बेटा आप चलना चाहते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन की तरफ, और अल्डिहाइड एंड कीटोन का नाम लेते ही पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत बार सपोज इफ यू आर गिवन विद CH3 CH2 CHO और उसके सामने लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, काफी लोग नहीं पहचान पाते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आप प्लीज जरा याद रख लीजिएगा कि सिर्फ डाइल्यूट NaOH ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइल्यूट NaOH इज देयर, आपका 10% NaOH भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और इसके साथ साथ आप सोडियम कार्बोनेट भी याद रखना,
और कभी कभी डाइल्यूट बेस भी बोला जाता है। ये सारे केसेस बड़े इस तरह से हो जाता है। आप प्लीज जरा थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस मतलब जरा लिखने रिएक्शन लिखने का ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर मिलता है आपको। यस, एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन में इतनी सारी चीजें हो सकती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, और यहाँ पे कोई दो मॉलिक्यूल नहीं दिया रहेगा आपको, सिर्फ ये जैसे कि आप प्रोपेनॉल देख रहे हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो इसके आंसर काफी कुछ आंसर दिए रहते हैं। तो आप जल्दी आंसर कैसे पहचान लेंगे? क्या इसको रिएक्शन सॉल्व करते समय आपको बहुत टाइम लगेगा? क्या आप एक जरा 10 सेकंड या 20 सेकंड का समय आप ले सकते हैं? जरा एक ट्राई करिए कि इसका प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा। यस, नहीं बेटा, नहीं नहीं प्रियम भी नहीं होगा बेटा, ऐसा गड़बड़ी हो रही है बेटा इसके अंदर, नहीं हो रहा है विठल, आंसर नहीं मिल पा रहा है बेटा, क्योंकि ये जानबूझ के मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये जब 3 कार्बन आते हैं ना प्रोपेनॉल, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा इसके अंदर। यहाँ पे काफी टाइम अब देखिए 2 मिथाइल पेंटेनोन एक जन ने आंसर कर दिया था। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये नहीं जमेगा बेटा इसमें। एक्चुअली मिथाइल बेटा एक ब्रैकेट में होना चाहिए था, मिथाइल नहीं दिख रहा उसके अंदर। जब आप आंसर करेंगे ना बेटा, एक ब्रैकेट में जब कंडेंस फॉर्मूला लिख रहे हो ना, एक आपको मिथाइल ब्रैकेट में करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोपेनॉल में बेटा प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो जानबूझ के मैंने यहाँ दिया है आपको, या कोई आपको याद दिलाने के लिए। होता क्या है, जैसे कि अभी देखिए CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH बेटा ऐसा लिखा हुआ है, और दूसरा जब आप लिखते हैं ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बेटा, इसका ध्यान रखना होगा। अल्फा हाइड्रोजन आउटसाइड लिखना पड़ता है आपको, और यहाँ CH3 लिखना पड़ेगा, और फिर CHO आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स कैसे करते हो आप पता है? जो आपका अल्फा है ना, अल्फा गोज टू दिस, गोज टू ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑल बाकी सारा आपका जो है वो कार्बोनिल कार्बन के पास जाएगा। बेटा इसमें क्या होता है, एक ब्रांच होना बहुत जरूरी है। मीन्स आपको आंसर मिलने वाला है CH3CH2 एंड CH here, और इसको बेटा एक OH अटैच हो जाता है, देन फर्दर ये हैव CH, फिर आप यहाँ पे CH3 लिखने वाले हैं, फिर CHO आने वाला है। तो इसमें बेटा कीटोन की तो बात बिल्कुल नहीं थी, और इस तरह से, और अगर आप IUPAC देखने जाएंगे तो यू हैव टू राइट योर 1 2 3 4 5। देख लीजिए बेटा, आपको ब्रांच करना जरूरी था, आपको पता चल चुका है। ये देखिए एक मिथाइल एक ब्रांच होना जरूरी है, क्योंकि अल्फा, आपको अल्फा पे ध्यान देखना था बेटा, अल्फा था अल्फा, और यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन ले जाना था ऑक्सीजन के पास। हाँ अभी बराबर है बेटा, अथर्वा ने लिखा है CH3CH बराबर, वही सही है, वही बराबर, बिल्कुल वही बेटा वही। तो इसका नाम लिखते समय आप बोलेंगे कि ये 3 हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे 2 मिथाइल मिलने वाला है आपको, 2 मिथाइल, और बेटा कितने कार्बन हो गए? 5 है, तो पेंटेनॉल हो जाएंगे, पेंटेनॉल। ओके, okay, so now we'll see. Yeah, it is there. That is enough actually.
Now, in this, almost we are done with this organic part of this. Actually, after this, Canizaro and haloform reaction is there. Just say for now we'll go for haloform reaction. जरा देखते हैं कि इसमें कौन दे सकता है, कौन नहीं दे पाएगा haloform reaction. तो शायद से मैं अभी आपका चैट नहीं देख पाऊंगा because that थोड़ा मुझे बेटा यहाँ पे जल्दी से सिखा देना होगा. सपोज इफ यू आर देयर विथ प्रोपेनाल, अगर बेटा प्रोपेनाल है तो आप याद रखिएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी CH3C डबल बॉन्ड O. बेटा ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है. अगर ये ग्रुप नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा ही नहीं. तो जैसा कि प्रोपेनाल में हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ये प्रोपेनाल में बिल्कुल नहीं है. ओके. अब कभी कभी ऐसा लगता है बेटा, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या इथेनॉल दे सकता है हेलोफॉर्म रिएक्शन. यस, इथेनॉल दे सकता है हेलोफॉर्म रिएक्शन. क्यों? आप बोलेंगे सर उसमें ये ग्रुप तो नहीं दिख रहा है, बट ऑक्सीडेशन करने के बाद इफ यू डू दिस ऑक्सीडेशन यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड OH. तो कोई भी कंपाउंड विच कैन प्रोड्यूस दिस ग्रुप, ये ग्रुप कहने का मतलब ये है कि देयर शुड बी मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप. बेटा ये होना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकते हैं. इस बात. और ज्यादातर हेलोफॉर्म रिएक्शन पहचानने के लिए बेटा क्या याद रखना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता है. अगर आप देखेंगे जल्दी से पहचानना है, अगर आपको देखिए इस तरह से एग्जांपल दिया रहेगा, इफ यू आर गिवन विद दिस यस, फट से आप हेलोफॉर्म बोल सकते हैं. क्यों? अगर आपके सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है यस, या फिर अगर जल्दी आंसर करना है, अगर ऐसे CH3 CH2 CH2 देन यहाँ CO CH3 ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा बेटा जल्दी में लिखा है मैंने. अगर आपको सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है कि तो आप यस बोल सकते हैं, हाँ यस हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है. ये एक इंपॉर्टेंट था. फिर बाद में बेटा वो कैनिजारो वाली रिएक्शन के बारे में जरा बात कर ले कि कैनिजारो में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम लोग को क्रॉस कैनिजारो के बारे में बात करें, सपोज इफ वी आर गिवन विद बेंजाल्डिहाइड और हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड दोनों दिया हुआ साथ में, एंड वी आर गिवन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा हुआ है. तो जैसा कि आपको नॉलेज है, आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड प्रीफर्स ऑक्सीडेशन, तो आपको ये मिल जाएगा. और दिस बेंजाल्डिहाइड गिव्स बेंजाइल अल्कोहल. ओके. अब इसी तरह से बेटा धीरे धीरे हम लोग CCM कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. तो इसमें सबसे खास हमें ये पूछा जाता है कि इफ दिस इथाइल अमाइन is when reacted with sodium nitrite and HCl, what it gives. बेटा ये काफी लोगों को पता है कि ये पेज नंबर आपके 498 पे दिया हुआ है कि C2H5OH बन जाता है, वी गेट अल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व. ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसके ऊपर. ये आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी यूजिंग नाइट्रस एसिड ऐसा दिया हुआ है. तो इसमें थोड़ा और क्या करना पड़ता है हमें, that is C2H5 and then we have here say this twice NH, and same reaction if we'll do here we get oily nitroso compound. This we have to keep in mind, and water we get in this, and tertiary does not react so this is very important. मैंने काफी टाइम ये देखा हुआ है, मैंने ये चीज काफी क्वेश्चंस में देखे हैं कि काफी जब ये अल्कोहल पूछा जाता है कि अल्कोहल का फॉर्मेशन फ्रॉम अमाइन, काफी बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को याद नहीं आता है, या फिर ये नाइट्रोजन गैस कब इवॉल्व होता है इसके बारे में. तो ये क्वेश्चन जरा खास था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए. और मैंने एक चीज और देखा है कि गैब्रियल के बारे में जब बात होती है तो गैब्रियल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. बेटा ये प्राइमरी अमाइन के लिए होता है गैब्रियल, वो जरा ध्यान रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर ये हैव अगर आपके पास अल्काइल हलाइड और अमोनिया से अगर आप रिएक्शन करना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन
ये सारे कॉम्बो मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आपको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल जाता है। सो ये अच्छा बेटा मेथड नहीं है, इसलिए गैब्रियल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे बेटा हम लोग एक और खास टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो आपका हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बेटा इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें कि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देता है। तो प्राइमरी अमाइन मीन्स अगर C2H5NH2 है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर कभी कभी क्लोरोफॉर्म और KOH भी ऐसा दिया रहेगा और हीट और अल्कोहल लिखा होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, मीन्स यू आर गोइंग टू गेट दिस C2H5NC मिलने वाला है। बाकी रेस्ट बाकी चीजें आपको इतना कुछ डिस्कस नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका जो अमाइन है उसके साथ क्लोरोफॉर्म और KOH दिख रहा है तो उससे कार्बाइल अमाइन बन जाता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा बाल्सी मैन। अभी बाल्सी मैन जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट पता होना जरूरी है। रिएक्टेंट जैसे कि आपके पास है दिस बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, इफ यू हैव दिस प्लस माइनस हियर, और यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है दिस HbF4, सॉरी दिस HbF4, इफ HbF4 इज गिवन और यहाँ पे A लिखा हुआ है, बाद में हीट दिया है, फिर आपको B लिखा हुआ है और आपसे जानना चाहते हैं कौन सा रिएक्शन है, तो बेटा ये आपका बाल्सी मैन रिएक्शन है। जनरली व्हाट हैपेंस इन दिस, ये आपका HCl निकल जाता है यहाँ से और आपको मिल जाएगा ये बेंजीन होगा आपका, और N2BF4 प्लस माइनस बन जाता है। आगे आप हीट कर रहे हैं तो हीट करते समय क्या हो जाएगा, ये ऐसे कट हो जाएगा बॉन्ड, सॉरी बेटा वो B नहीं कट जाता है गलती से, नॉट दिस, इस तरह से हो जाएगा एंड दिस एक F यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वी गेट दिस फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और आपको नाइट्रोजन गैस मिलने वाला है प्लस BF3। ये बाल्सी मैन रिएक्शन है। और एक बहुत बड़ा खास बात और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक होता है आपका हिंसबर्ग, ये भी आपके प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट। बेटा हिंसबर्ग में आप लोग क्या क्या याद रखोगे, उनके क्या क्या रिएजेंट्स मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या किया था, ये आपके प्राइमरी जो आपका अमाइन है, जैसे कि मैं अगर पैम बोल लूं तो पैम, सैम, टैम, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, इन तीनों का रिएक्शन किया था इन्होंने हिंसबर्ग जी ने विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन HCl। बेटा यहाँ छोटा सा मैं आपको ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं सिखाने जा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि पैम जो होता है आपका प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद ऑल थ्री, टिक टिक टिक, तीनों से रिएक्शन करता है। सैम रिएक्शन करता है, फिर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और टर्शरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट, लास्ट में इट रिएक्ट्स। अगर बस ये बेटा जानकारी रहे तो आप रिएक्शन बता पाएंगे, डिस्टिंग्विश हो पाएगा आपका। प्राइमरी अमाइन तीनों से रिएक्शन करता है, सेकेंडरी अमाइन पहले करेगा फिर रिएक्शन नहीं करता है, और टर्शरी अमाइन पहले रिएक्शन नहीं करता पर लास्ट में रिएक्शन करता है, बिकॉज इट गिव्स सॉल्ट हियर, यहाँ पे सॉल्ट देता है वो। तो इसी तरह से जरा हम लोग ने हिंसबर्ग का जो रिएजेंट है बेटा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं बेटा देखो होता क्या मालूम है अब जो आपके जो अगले जो टॉपिक्स है, जैसे आपका ये जो बायोमोलिक्यूल्स हो जाता है, या फिर मान लीजिए पॉलीमर है, और ये हैव केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब बड़ा मेमोरी बेस्ड होते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे जब हमने स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, काफी कुछ चीजें आपसे मैं बात कर रहा था। और ये जो 3 टॉपिक आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ ज्यादा समझाना नहीं है, वो जैसे कि आप जानते हैं मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो ये टॉपिक अभी हम फिलहाल
नहीं डिस्कस कर रहे हो, मेरे एमसीक्यू जो मैं सॉल्व करूंगा तो बात करेंगे, या फिर शायद वो मैंने रखे ही नहीं है आपसे बात करने के लिए फिलहाल। अब हम लोग जरा सॉलिड स्टेट की तरफ थोड़ा देखते हैं कि इसमें अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी चाहिए। यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका सिंपल जो है सिंपल एससीसी और बीसीसी और एफसीसी, इनका पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता भी होगा बेटा 52.4% एंड 68%, ये याद रखना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 74% क्या होता है मालूम है, बहुत बार लोग वैकेंट कितना है वो पूछते हैं, तो जो कि आपको 100 में से सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, और आपको ये तो पता ही है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि मॉलिक्यूल होता है 1 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 4 हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हो 1 2 का 4 दिख रहा है आपको, ये तो 1 2 का 4 आप याद रख लीजिएगा। तो आपको Z की वैल्यू दे रहा है वो Z है आपका 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है। तो यही ज्यादातर ना मैंने जहां तक देखा है कि अगर अगर हम सीईटी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी या फिर कितना वैकेंट स्पेस है उसके बारे में जरा पूछा जाता है। तो इसका जरा आप देख लीजिएगा। जस्ट 1 सेकंड बेटा, विल डिस्कस। एक्चुअली बेटा ऐसा करते हैं कुछ जब तक टॉपिक हमारे पास, क्योंकि हमारा टाइम भी देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस भी जरा हम लोग डिस्कस कर ले बेटा जो हमने किया है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए या फिर अभी राइट नाउ आपको शायद से सॉल्व करना होगा, ज्यादा बेहतर होगा। आप लाइव सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे भी नॉलेज मिल रहा है कि आपको बहुत जानकारी हो चुकी है। जैसे बेटा यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने दिख रहे हैं तो कैसे आप जल्दी से क्विक आंसर कैसे दोगे कि ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो शायद से आप चैट लिखेंगे बेटा, मैं फिलहाल अभी मुझे देखने में समय लगेगा लगता है। लगेगा ये भी कोई चेंज नहीं है जी बेटा, जी जी बिल्कुल ए आंसर दे रहे हैं ये, हाँ बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। वन सेकेंड बेटा, वन सेकेंड बेटा, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, बस एक सेकेंड जरा। कितना बैठ रही है? जी हाँ बेटा बिल्कुल सही, आपने ए आंसर बिल्कुल सही दिया था, करेक्ट आंसर है आपका ए। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं एक्चुअली बेटा जो कॉम्प्लेक्स है उसको चार्जेस जो आते हैं वो चार्जेस से पता चलता है। चार्जेस इन द सेंस अगर आप एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कि अगर ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, हाउ मेनी आयंस दिस विल प्रोड्यूस। अगर आप देखने जाए तो ये CO आ जाएगा आपका, यहाँ पे NH3 6 टाइम है एंड दिस ये विल गेट 3 प्लस एंड प्लस 3 Cl माइनस।
तो जैसे कि मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर आपको चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ भी अगर हम इसको बेटा आयनिक फॉर्म में लिखे तो विल गेट दिस प्लस एंड दिस, हियर वी हैव FeCN6 दिस एंड ये 4 माइनस। तो अगर आपको ये चार्जेस दिखाई देते हैं, हाँ, तो इससे बेटा जहां भी चार्जेस दिख रहे हैं इसका मतलब पता चलता है बेटा वो कैटायनिक है, एनायनिक, और चार्जेस नहीं दिख रहे जैसा कि ऑप्शन ए में है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। तो ठीक है बेटा, हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। विल डू दैट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट नाउ विल सी। बोथ आर डायमैग्नेटिक द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल। बेटा ये हमारी बात हो चुकी है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो शायद से आप आंसर कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने मुझे बताया भी था कि एक्सेप्शनल केसेस देर, तो शायद आंसर मिल सकता है। यस, बिल्कुल सही आंसर मिल रहे हैं, यहाँ पे बी आंसर मिल रहे हैं बेटा। कोई किसी ने डी गौरव लिखा है वो सही नहीं है, बाकी बी आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो यहाँ भी नजर आ रहा है, बट ये मैंने आपको बताया था एक्सेप्शनल केस है। दिस टेट्राहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है ये। तो टेट्राहेड्रल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेटा यहाँ पे dsp2 होगा, स्क्वायर प्लेनार। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सही आंसर दिया आपने। तो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात बेटा आपकी बहुत बेहतर आपने कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और आगे की तरफ देखते हैं ना। जैसे कि बेटा ये वाला मैंने सबको सिखाया था, मेरी आपसे बात हुई थी, जरा मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि शायद आपको समझ में आ गया है। बेटा आंसर बी देना चाह रहे हैं क्या? बी तो आंसर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आप शायद से आंसर बी देना चाह रहे हैं क्या? 8 आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, डी दे रहे हैं, और समझा नहीं बेटा, आपको समझ नहीं पाए शायद से, अब डी आंसर दे रहे हैं। बेटा डी आंसर कैसे हो पाएगा शायद से? चलिए ठीक है, वो आपको ऑक्सलेटो आयन के बारे में शायद नहीं पता होगा, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये जो आपका ई एन है ये बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब 2 × 2 करना पड़ेगा, उसको आपको 4 समझना पड़ेगा। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 आ जाता है, दिस 4 कम्स इन दिस 4। और आपका ये जो ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो बेटा वो 2 आता है बेटा, वो भी बाइडेंटेड है, वो भी बाइडेंटेड है, तो 2 और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, टोटल 6 आएगा। तो आपका जो ये इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का टोटल पूछा था, तो दोनों का टोटल बेटा यहाँ पे 9 आने वाला है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं बेटा कैसे क्या हुआ है? आपका जो ई एन आप देख रहे हैं बाइडेंटेड है आपका, मैंने यहां लिख के दिया था, ये ऑक्सलेटो भी बाइडेंटेड है, तो उस दोनों को ऐड करके बेटा 6 आ जाएगा। ये बाइडेंटेड है, 2 है, तो दोनों का सम करना पड़ता है बेटा, दोनों सम करेंगे 6 मिलेगा आपको। और आपका ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट करने देख लीजिए कैसे होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐसे कर सकते हैं, एम के लिए आप एक्स पकड़ लीजिए, आगे आपका ई एन 0 है, और ऑक्सीलेटो -2 होता है, आगे आपका क्लोरीन का -1 है, इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, एक्स इक्वल टू 3 मिलने वाला है आपको। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों मिला के 9 हो जाते हैं। अच्छा ये देखते बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये शायद से अगर आपको पता हो तो,
यस अथर्वा, यू आर राइट, बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि आपने ZXY ये जल्दी जल्दी अपने पता लगा लिया। सबसे बड़ी बात ये थी बेटा कि PD का एटॉमिक नंबर मालूम होना बहुत जरूरी था, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 है, तो 6 है तो वो 6 × 2 मतलब यहाँ पे आपका 12 आने वाला है, और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा सामने से 4 दिखाई दे रहा है। तो अगर हम और आगे जाएं तो Z - X + Y करने के बाद आपको मिलने वाला है बेटा ये 46 - 4 + 12, तो ये आपको हो जाएगा 42 + 12, तो दैट इज 54। बिल्कुल सही आंसर दिया था आपने, करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, ये चीज मेरा बताना जरा बाकी भी रह गया था, दैट टाइम मैं आपको इतना बता नहीं सका था, शायद से हम थोड़ा सा और जल्दी आगे टॉपिक में आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको प्रायोरिटी सीरीज जरा पहचाननी पड़ेगी, मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा कि कैसे हो जाता है ये। आर्यन आंसर दे रहे हैं बी, और लोग भी आंसर कर रहे हैं बी, ठीक है। बी आपने बेटा बहुत जल्दी पहचाना है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा आपने पहचान लिया है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट है, क्योंकि अब जैसे कुछ लोगों को नहीं पता हो तो बेटा ये जो CONH2 आपका होता है, CONH2, हाँ CONH2 है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि CONH2 में C डबल बॉन्ड ONH2, तो आपको ऐसे करना होगा, कार्बन कार्बन के लिए आप 6 कंसिडर करिए, उसका एटॉमिक कंसिडर मतलब 6 होता ही एटॉमिक नंबर। बाकी क्या करना चाहिए, रेस्ट आपको देखना चाहिए कि ये नंबर बड़े बॉन्ड है, उसको 8 एटॉमिक नंबर 8 8 एंड दिस 7, मतलब आपको 8 8 7 ऐसे देखना होगा। और बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम उनके बारे में बात कर लें तो सपोज जैसे COCH3 है, अगर COCH3 के बारे में बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ जी बेटा, अभी COCH3 अगर ये देख रहे हैं आप, तो यहां पे आप कैसे करेंगे, वही आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 6 है, और इसको आप कंसीडर करेंगे 8 8 एंड 6, तो ये आपका हो जाएगा 886 886। अगर हम लोग CHO को देखना चाहते हैं कि CHO, तो इसके लिए अगर आप इसको स्प्लिट करें जरा, C डबल बॉन्ड OH, और ज्यादा अगर बेटा करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C एंड दिस ऑक्सीजन, यहाँ फैंटम शो कर देंगे, और यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, तो अगर आप देखें तो ये हो सकता है कि आप कार्बन आपका जो है 6 हो गया, और रेस्ट ऑल अब यहाँ देखिए 8 8 एंड 1, बेटा 8 8 1, ये सारा अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको मिलेगा, जैसे कि पहले 887 मिल रहा है, फिर 886 मिल रहा है, यहाँ पे 881 आ रहा है, तो आपका आंसर बी मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग और बात कर लें कि चलिए यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि COOH अगर दिया हुआ है, दैट इज C डबल बॉन्ड OH दिया है, तो आप ऐसे समझ लेंगे कि कार्बन को आप 6 कंसिडर करेंगे, रेस्ट ऑल 8 8 8। व्हाई? बिकॉज 8 8 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नाउ विल सी हियर फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 में जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है। प्रतीक, यस, राइट आंसर। पूजा और बाकी गौरव सब लोग आंसर कर रहे हैं, प्रिया भी आंसर कर रहे हैं, यस बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है।
आप लोग ने बहुत जल्दी पहचान लिया। जैसे कि आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में अगर आप SN2 कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ज्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री एंड देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, इस तरह से आपको याद रखना होगा। जैसे कि अब ये कंपाउंड अगर हम लोग देख ले तो कंपाउंड में थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 1 डिग्री दिया, देन ये हैव गिवन विद 3 डिग्री, और यहाँ पे फिर 2 डिग्री है आपके पास। ऑर्डर जरा आपको सही देखना पड़ेगा, तो ऑर्डर देखेंगे तो आपको बी आंसर मिलेगा। और वही अगर आप SN1 करने जा रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बेटा, ये बहुत सिंपल सा एक, बहुत जल्दी आप आंसर कर दोगे और आप लोग को पता भी चल चुका होगा विच रिएक्शन इज दिस। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वर्ड्स सिंथेसिस है, बस आपको आप जल्दी से आंसर कर सकें। ये एन अल्केन, बिल्कुल सही, ढेर सारे लोगों के आंसर मिल रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया है। यस, सुयोग, बाकी लोग ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया आंसर किया बेटा आपने। एन अल्केन बताया, करेक्ट आंसर है। अच्छा बेटा, इसी जगह पे अगर हम लोग ये कर दें कि हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है और इथाइल आयोडाइड भी है एंड वी आर रिएक्टिंग विद सोडियम, तो बेटा कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जरा यहाँ बता सकते हैं? यहाँ पे क्या एक प्रोडक्ट आएगा, दो आएगा, या कितने सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं यहाँ पे? यस, काफी कुछ, 3 प्रोडक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा। और ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है आप लोग का। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इथेन बनने वाला है, इथेन भी बन जाएगा और आपका नॉर्मल ब्यूटेन भी बन जाता है, और तीसरा आपको प्रोपेन भी मिलने वाला है। यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। और बाकी तो बाय प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिएगा और जरा पता लगाइए बेटा कि क्या आंसर हो सकता है इसका। गौरव, आपका थोड़ा गलत हो गया था बेटा, ब्यूटेन आने वाला था, मीथेन नहीं आ सकता बेटा इसमें। बी आंसर बिल्कुल जल्दी पहचाना, बहुत जल्दी पहचाना आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर है, यू आर राइट। यस, करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है कि ये ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन है, C2H5 MgCl, और ये अच्छी तरह आपको पता चल गया है कि ये अल्केन इथेन है, और ये आप जानते हैं कि ईथर बनने वाला है, C2H5O C2H5। और बेटा इसका क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा, लास्ट डी वाले का क्या होने वाला है? What this D is going to give? यस बेटा, इसका आंसर कुछ मिल सकता है कि डी वाला क्या देगा हमें? आदित्य, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही आंसर किया आपने। यस, यू आर राइट, एसिड नहीं बनेगा बेटा इसमें तो। आदित्य ने पहले एसिड बोला फिर C2H2 बोला, ओके। अल्कीन नहीं बेटा, अल्कीन नहीं बनता है, अल्काइन बनता है बेटा इसके अंदर। ये आपका HC एंड दिस Cl और इसी तरह से यहाँ पे मैं Cl लिखने वाला हूँ, और ये आपका देख लीजिए CH आ जाएगा, और यहाँ बीच में आपका है सिल्वर। तो बेटा आपको मिलने वाला इस तरह से, देख लीजिए ये सारी चीजें यहाँ से इस तरह, ये देखिए। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला इधर, अब शायद से पता चल गया होगा बेटा आपको क्या मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा अल्काइन, मिल जाएगा बेटा ये, और इसको बैलेंसिंग आप देख लेंगे तो अल्काइन बन जाता है। ठीक है, कौन बेटा अलाइलिक हलाइड है इसमें से? आपको विनाइल अलाइल बेटा आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जनरली वी राइट CH2 डबल बॉन्ड CH, say here Cl, other is CH2 डबल बॉन्ड। यस, अच्छा डी लिखा है आपने, डी आंसर बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यस, यू आर राइट, डी काफी लोगों ने आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 2 3 और 1 4 अगर मैं करना चाहूं यहाँ पे तो CH2Cl। जी बेटा, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
अब जैसे कि आप जानते हो कि बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे आपका sp3 है विच इज बॉन्डेड टू sp2 है। तो अगर आप देखें तो बेटा ये जो कार्बन होता है ये आपका दिस योर अलाइलिक, बेटा ये आपका अलाइलिक है ना। और यहाँ पे दिस कार्बन इज विनाइलिक, ये विनाइलिक, दिस विनाइलिक। तो बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, करेक्ट आंसर है 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्स-1-इन, करेक्ट आंसर है आपका। कौन बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देखते हैं कौन आंसर कर रहा है। सी बिल्कुल सही, काफी लोगों ने बहुत जल्दी आंसर किया है। यस यू आर राइट, बहुत जल्दी पहचाना आपने, क्योंकि जहां मोस्टली बेटा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन और ऑप्टिकली एक्टिव वाली जो बात आती है ना, तो कायरल कार्बन आपको सेकंड कार्बन पे जल्दी मिल जाता है। जैसे कि आपने आंसर भी बहुत अच्छा किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे Cl दिख रहा है, यहाँ पे CH2 है और ये आपका CH3 है, बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा जब इसकी बात हुई है तो आप मुझे जरा ये, काफी लोग जानते हैं फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर इन ग्लूकोज? कायरल कार्बन, यस 4, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आपने आंसर किया है बेटा। लेकिन प्लीज आप जरा ध्यान रखिएगा कि आइसोमर पूछते समय आपको जब 2:4 करते हैं तो 16 लिखना बहुत जरूरी है ना। 16 आइसोमर्स आर देयर फॉर ग्लूकोज। अच्छा बेटा जब ग्लूकोज की जानकारी है आपके पास तो जरा आप फ्रुक्टोज के लिए जरा बेटा कोशिश करिए, अगर फ्रुक्टोज हो तो कितने कायरल कार्बन होंगे? हाँ जी, फ्रुक्टोज देख सकते हैं, उसमें बेटा कितने कायरल होंगे? हाँ बिल्कुल सही, 3 आ रहा है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर बेटा 3 आएगा, बेटा 3 आएगा। जरा प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, फ्रुक्टोज में 3 ही होता है। तो यहाँ पे बेटा ये 16 था आपका। फ्रुक्टोज की जो बात हुई थी बेटा, फ्रुक्टोज आप अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज CH2OH और यहाँ पे आपके C डबल बॉन्ड O है, फिर आपका यहाँ पे CHOH थ्राइस आ जाता है, फिर यहाँ पे CH2OH। तो बेटा आपके पास जो कायरल कार्बन होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं। तो आपका यहाँ पे कायरल कार्बन आपका फॉर्मूला फिर आ जाएगा, आइसोमर A इक्वल्स टू 2:3 आ जाएगा, मतलब 8 हो जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स। चलो ठीक है बेटा, यहाँ चलते हैं, जरा कायरल कार्बन का कुछ पता लगाते हैं कि हमारी कायरल कार्बन आर देयर इन दिस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही हमें सीखना चाहिए। यस बेटा 3 मिल रहा है आप लोग को। गौरव बोल रहे 5 मिल रहा है, निधि 3 बोल रहे हैं, सुयोग 4 आंसर कर रहे हैं और आदित्य भी 4 आंसर कर रहे हैं। सुयोग आदित्य बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बेटा। 4 प्रतीक आप 0 कैसे बोल सकते हैं बेटा? तन में 3 आंसर कर रहे हैं, नहीं बेटा 4 आंसर ही सही होगा। मैं आपको 4 दिखाता हूं, यहाँ पे 4 देख लीजिए कहाँ पे है। एक बेटा आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज देयर हियर, एक यहाँ नजर आ रहा है, दूसरा बेटा आपको इधर दिखाई देगा, थर्ड इज दिस हियर, और आपको फोर्थ यहाँ पे नजर आएगा। देखिए ये आपके कायरल कार्बन है, बाकी सारी जगह पे कायरल कार्बन ढूंढ रहे बेटा हम लोग, कार्बन चाहिए हमें। तो जहां डबल बॉन्ड नहीं रहे, डबल बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड को आप पहले नेग्लेक्ट मतलब निकाल देना, डबल बॉन्ड तो सोचना ही नहीं यार, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ कोई चांसेस नहीं, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे तो होंगे ही नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। बाकी तो ये सल्फर है और यहाँ पे तो कार्बन के पास 2 मिथाइल है, तो नहीं चलेंगे। तो जरा आप इसका जरा ध्यान रखिएगा और इस तरह से फिर आप आंसर कर पाएंगे। तो ये जो मैंने ब्लू से बेटा मार्क किए हुए हैं वही आपके 4 हैं, इसके आंसर बेटा 4 है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं इसमें कितने मिल जाएंगे।
बेटा इसका आंसर कुछ आप लोग बेटा कुछ लोग 3 और 5 आंसर कर रहे हैं। पूजा का आंसर बिल्कुल सही है, प्रियांबी भी सही आंसर कर रही हैं। प्रतीक वापस 0 लिख रहे हैं। बेटा आपको इसमें कायरल कार्बन नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्या? 0 कैसे हो सकता है बेटा? अगर आप ये कॉर्नर्स को देखेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे कि ये जो जगह होती है, देखिए यहाँ दिख रहा है, ये जो जहां भी लिंकेज आपको नजर आ रहे हैं ये सारे कायरल कार्बन होते हैं बेटा। यहाँ लिंकेज नजर आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरा लिंकेज देखिए यहाँ पे, इसी तरह से पहचाना जाता है ये। और देखिए यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है ये, तो ये सारे कायरल कार्बन होते हैं बेटा पहचानने के लिए। बाकी सारे जगह आप नहीं बोल सकते, बिकॉज ये आपका CH2 है, दिस CH2, यहाँ भी CH2, ये सारे CH2 है। डबल बॉन्ड तो कभी सोचना ही नहीं बेटा। बाकी आपके CH2 हैं, यहाँ पे भी CH2 है, बाकी आप देख रहे हैं सारे ये CH2 हैं, तो यहाँ तो होगा ही नहीं। जल्दी कैसे पहचाना जाता है? जहां बेटा ये लिंकेज होता है ऑफ रिंग्स, रिंग जहां पे जुड़ते हैं वही जगह होती है जहां पे हम पहचान सकते हैं कायरल कार्बन। तो बेटा इसके जैसे अभी पहले हमने आंसर किया था, यहाँ पे 4 आंसर किया था, तो इन दिस वी हैव 6। ओके, अब देखते हैं बेटा इस तरफ आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड। ये तो बेटा बहुत जल्दी आप आंसर कर पाओगे, हमारी बातचीत हो चुकी है, शायद से आप आंसर आ भी गया होगा आपका। ओके, आंसर बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड, बिल्कुल सही, सही आंसर है बेटा, बहुत अच्छा है। फिनोलिक कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। बेटा ये बहुत खास चीज है, ये जल्दी से पहचानना चाहिए, और बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया भी था और बहुत अच्छा आंसर दिया है। ये शायद से अपने डैड के सेलफोन से कर रहे होंगे जो डी आंसर दिए हैं। श्रेया भी दे रहे हैं, यश भी दे रहे हैं, डी बिल्कुल सही। बेटा आप लोगों को शायद पता है, इसके बारे में अच्छी जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी। बेटा ये बहुत खास बात है, आप याद रख लीजिएगा। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो सारे आप पहचान सकते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप होता है, और आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, और आपके हैलोजेंस भी आते हैं, उसमें हैलोजन भी आ जाते हैं, या इवन एल्डिहाइड भी होता है आपका। ये मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सभी आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये सारी चीजें अटैच हैं तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है दैट इंक्रीजेज एसिडिटी, ये आपको जरा याद रखना होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, ये ध्यान रखिए, काफी काम आएगा एसिडिटी पहचानने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर बहुत करेक्ट रहा यहाँ का, डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे क्या आंसर करना चाहेंगे आप हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए? बी आंसर कैसे मार्क कर सकते हैं बेटा? ए आंसर बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने ए आंसर सही किया है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि एसिड जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, और एसिड के बाद फिर अल्कोहल होते हैं, एंड आफ्टर अल्कोहल दीज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन आ जाते हैं। ठीक है ना, और अल्डिहाइड एंड कीटोन के बाद में फिर आपका आ जाएगा ईथर आ जाएगा। और ये सब इसके पीछे रीजन ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि एसिड में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके अंदर होता है बेटा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एसिड में। और अल्कोहल में भी बेटा दिखाई देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इस तरह से, और बाद में ईथर उसके बाद आएगा बेटा यहाँ पे। तो ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आपने किया था कि अल्कोहल्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव अ प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन? कौन नहीं देगा? डी आंसर बिल्कुल सही, करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर किया
दिया बेटा आप लोगों ने, बहुत जल्दी क्विक आंसर दिया, बहुत कम सेकंड आपने लिए होंगे, शायद से 2 सेकंड में आपने आंसर कर दिया। प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि वो कीटोन है, कीटोन कभी भी बेटा आपको प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा। कीटोन का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल। पर अब मुझे एक बात यहाँ बेटा मैं और आपको शेयर करना चाहता हूं कि प्लीज जरा आप एक बात याद रख लीजिएगा, दैट अगर ग्रिग्नार्ड की बात आ जाए कि RMgX इज गिवन एंड दैट इज इफ रिएक्टेड विथ, ये भी बहुत खास बात है, क्योंकि जरा देख लें, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है या फिर RCHO है या फिर RCOR है, सो व्हाट इट गिव्स रेस्पेक्टिवली। बेटा ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे तो क्या देगा, और RCHO और कीटोन क्या देगा, आप रेस्पेक्टिवली बता दीजिए। इसे सपोज इफ नंबर 1 2 3 दिया गया है तो नंबर 1 2 3 दिस गिव्स व्हाट, ये क्या देगा, व्हाट दिस, बेटा ये आपका नंबर 1 है, ये सपोज इफ ये नंबर 2 हम रख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 3 दे रहे हैं इसको। अभी तक बेटा कोई आंसर नहीं आया है? क्या बेटा आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ग्रिग्नार्ड अगर रिएक्शन करते हैं विद एल्डिहाइड एंड कीटोन तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेटा ये 3 आप 3 एग्जैक्टली, बेटा 3 किसका आंसर दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे कोई हमने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप इसमें से अल्कोहल बताना है कि प्राइमरी अल्कोहल कब मिलेगा, सेकेंडरी कब मिलता है, टर्शरी कब मिलता है। तो आर्यन ने आंसर लिखा है 1 2 3, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल देगा, सही आंसर दिया इन्होंने। दिस गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल, ये आपको देता है सेकेंडरी अल्कोहल, यहां मिलता है आपको टर्शरी अल्कोहल, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स व्हिच वन प्रोड्यूसेस एनिसोल, आदित्य बिल्कुल सही आंसर है आपका, बहुत जल्दी आपने आंसर किया है। आर्यन प्रियम भी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी आपने पहचाना, इतना क्विक पहचान लेना बहुत बेहतर है। आपको मालूम था, जानकारी थी आपको कि फिनॉल का अगर हम पहले रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर देंगे तो विल गेट दिस सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा हमें, दैट इज ONA प्लस माइनस, and then further then this is when further reacted with CS3I it gives anisole. Yes, you are right. Okay, in the following sequence of reaction, now this we'll see here what A B C are going to get here. क्या आप मुझे ऑर्डर में बता सकेंगे कि A क्या होगा आपका रेस्पेक्टिवली, व्हाट ए या गोइंग टू गेट, या फिर डायरेक्टली आप आंसर देना चाहेंगे यहाँ पे? ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट आंसर दिया तो भी आई चेक, मैं देखता हूँ क्या मिलने वाला है। पर बेटा काफी लोग ने बी आंसर किया है, तो टोलुइन का फॉर्मूला है बेटा वो सी पूछना चाहते हैं। टोलुइन तो स्टार्ट में दिया हुआ है। जी हाँ, एक जन का आंसर बिल्कुल सही आया था, अभी जस्ट अभी आंसर आदित्य ने भी दिया, उसके पहले एक जन ने आंसर दिया था। श्रेयस ने बहुत जल्दी आंसर किया था, शायद से श्रीयोग ने आंसर किया है, पूजा ने भी आंसर किया है, बिल्कुल सही है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा आपका टोलुइन वाला रिएक्शन जो है, इधर CS3 है आपका, जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये पूरी तरह से जो अल्काइल ग्रुप है दैट डिसअपीयर्स एंड वी गेट कार्बोक्सिल ग्रुप। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर इसका रिएक्शन फर्दर थायोनिल क्लोराइड से किया तो यू आर गोइंग टू गेट दिस, आपको मिलने वाला है COCl। और आगे आप जाते हैं तो आपको पता है बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है जो मैं अभी करने जा रहा हूं? डू यू नो द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? रोशन सुयोग बिल्कुल सही, बहुत जल्दी क्विक आंसर आपने किया है कि दिस इज रोसेनमंड रिएक्शन, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आप जानते हैं कि ये कौन से पेज पे दिया हुआ है रोसेनमंड रिएक्शन? किसी को पता है आपके बुक में? नहीं पता, 455 पेज पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
द यूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड दिस। बेटा चलिए ट्राई करते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये। जल्दी से जल्दी कौन आंसर करेगा बेटा, देखते हैं हम लोग। बी आंसर बेटा कैसे आप बोल सकते हैं? सी नहीं होगा बेटा, सी कैसे होगा? आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहां से स्टार्ट होगा, 1, ये आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाता है, दिस 4 या ये आपका 5 है, दिस 6 या दिस 7। और आप देख रहे हैं कि थर्ड पे 2 मिथाइल नजर आ रहे हैं बेटा। यहाँ पे जब 2 मिथाइल दिखाई दे रहे हैं तो आपको 3 डाई मिथाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, क्या जानना चाहते थे बेटा? जी जो पूछना है बेटा आप चैट में लिख सकते हैं कि मैंने बता तो दिया है बेटा यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने देख लिया है। हाँ अच्छा, अदर वे नहीं जाना था बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादा ज्यादा ब्रांचिंग है ना दोनों तरफ से। सी आपका ये जो कीटोन है बेटा, उसको 4 नंबर मिलने वाला है फ्रॉम राइट और लेफ्ट, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड। वो देखना ज्यादा, उनको कम नंबर देना जरूरी था, दैट्स वाई आपको डी लेना था। ओके और आप लोग बेटा ऐसा करिएगा कि ये जब हमारा सेशन आज खत्म होता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेटा जो भी चीजें और एक्स्ट्रा, अगर आप और टेक्निक सीखना चाहें, ज्यादा टेक्निक में सिखा नहीं पाया हूं और बहुत कुछ चीजें बाकी हैं, आप क्लास होने के बाद आप यूट्यूब पे जाएं और आप टाइप करें ऑपरेशन केमिस्ट्री, जैसे शायद से आपने देखा भी होगा, शायद स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। आप ये टाइप करें और आपको ढेर सारे आईयूपीएससी दिखाई देंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर दिखेगा। नॉमेनक्लेचर का वी हैव 8 पार्ट्स आर गिवन, 8 पार्ट में नॉमेनक्लेचर दिया है, प्लीज जरा देखिएगा, ठीक है। तो और बहुत सारे आपको मेरे जो ट्रिक फॉर्मूले जो आइडियाज हैं वो सब कुछ मिल जाएंगे, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। द कंपाउंड दैट इज ओनली कीटोनिक। नाउ चलिए बेटा ये देखते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, बहुत क्विक आपने आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका। चलिए ठीक है बेटा, सी आंसर आपने दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सपोज इफ यू गिवन विद, अगर बेटा आपको इस तरह से कोई कंपाउंड दिया है लाइक CH3 है, यहाँ पे CH इज देयर एंड here CH3 इज देयर, है ना, एंड अब से ऑल राइट हियर से एक मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और CH3 CHO है। बेटा अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है और आपसे बोलना चाहते हैं कि जरा बताइए कि विच अल्कीन कैन गिव दिस, बेटा आपको आइडिया है कि आप कैसे पता लगाएंगे विच अल्कीन कैन गिव दिस? क्या आप नाम बता सकेंगे मुझे? बेटा ये भी सीखना है हमें कि मतलब ओजोनोलिसिस, बेटा ओजोनोलिसिस की बात कर रहा हूं, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट कि ओजोनोलिसिस करने के बाद अगर हम लोग कौन सा अल्कीन होगा विच कैन गिव दिस? आइसोब्यूटीन बेटा, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन वर्ड हम बेटा यूज करने वाले हैं। अगर बोलना भी हो तो बेटा आइसोब्यूटाइलीन बोलता है, वैसे भी यहाँ पे बेटा 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। यस प्रतीक बिल्कुल सही है बेटा, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया तो उतना तो काफी है ना, सफिशियंट है, लेकिन चीजें याद आनी चाहिए बेटा जरा। जैसे कि भी एक क्वेश्चन देख लीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, जरा देखिए। नहीं मिल रहा है बेटा, इसको पता लगाने का तो बढ़िया सा तरीका है, अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो ये दोनों ऑक्सीजन बेटा आप कट कर दीजिए और
ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं स्टार बना रहा हूं, मतलब स्टार मतलब ऐसे बना दिया, ये दोनों कार्बन बेटा कनेक्ट कर दो। तो अगर आप कनेक्शन करते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन सुयोग, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, करेक्ट आंसर है। या आइसोपेंटीन भी हम बोल सकते हैं, आप सही आंसर मिल रहा है। तो CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे C है, दिस इज CH3 और डबल बॉन्ड और CH एंड CH3। कैसे पता चला? आप जो भी कुछ वहां राइट साइड में दिख रहा है, ऑक्सीजन को आप कट कर दीजिए, और वो दोनों जो कार्बन आपके दिखाई दे रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन अटैच है, उन दोनों को आप लिंक कर देंगे, सो यू विल गेट दैट योर अल्कीन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कार्बोक्सिल ग्रुप? शायद से बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं, हमारी बातचीत हो चुकी है बेटा इसके बारे में। तो बी, पिक्रिक एसिड, बिल्कुल सही। कुछ ऐसे 5-6 नाम ऐसे, या करीब 10 हो सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, पिक्रिक एसिड करेक्ट आंसर है। शायद से बेटा 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे, तो पहले एक डिस्कस करते हैं, पहले एक देखते हैं, दूसरे की तरफ नहीं जाते हैं। आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल, सबसे बन सकता है एक्सेप्ट वन, कौन नहीं दे सकता है? सी आंसर आएगा बेटा इसका। हाँ सी आएगा ना, क्योंकि अभी तो मेरी बेटा हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इवन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली जो चीजें हैं ना, अगर आपको 2 दिखाई दे रहा है मतलब जरूर मिलेगा। यहां पे देख रहे हैं बेटा 1 दिखाई दे रहा है आपको, अगर 1 है, अगर 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, तो ना तो आपको क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म ये सारे रिएक्शन में नहीं मिलेंगे, और ना तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नजर नहीं आएगी अगर नंबर 1 पे इफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। बेटा ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिएक्शन है, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी आंसर किया बेटा आपने, बहुत बेहतर है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता भी है। आंसर आपका सही है, सी आंसर इज करेक्ट, दैट इज एसिडिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग कैल्शियम से कर देते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम एसीटेट का जब ड्राई डिस्टिलेशन आप करने वाले हो, तो यू विल गेट इन दिस प्रोपेनोन CH3COCH3 ऑन ड्राई डिस्टिलेशन। लेकिन बेटा एक बात बताइए, अगर मेरे पास अगर मुझे प्रिपेयर करना है इथाइल मिथाइल कीटोन बाय ड्राई डिस्टिलेशन, दिस ड्राई डिस्टिलेशन, बेटा आप बता सकेंगे कि कौन सा कैल्शियम सॉल्ट बेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा? कैल्शियम सॉल्ट, विच कैल्शियम सॉल्ट कैन गिव दिस? बेटा कहने का मतलब कैल्शियम सॉल्ट आपको एक कैल्शियम सॉल्ट नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पे ना 2 कैल्शियम सॉल्ट लगेंगे, A+B। आप एक बात का ध्यान रखिएगा जरा, कि जब आपके पास 2 अपोजिट चीजें नजर आए, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका ये दिखाई दे रहा है, देखिए अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं ना, अगर अलग अलग दिखेंगे ना, तो आपको बेटा फिर ये अलग अलग ही मिलेगा। ये मिक्सचर, यस आदित्य, तन्मय कुछ लिख रहे हैं शायद। बेटा सिर्फ इथाइल नहीं बोलना होगा बेटा, जैसे कि उसका नाम आप बता सकेंगे क्या बनने वाले? जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर्माइल नहीं आएगा मेरा बेटा। बेटा क्वेश्चन यही है गौरव, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, क्वेश्चन यही है। ये देखिए, ये मैंने जो लिखा है अभी, अब जो कलर जो पेन यूज कर रहा हूं बेटा, मैं बोल रहा हूं कि अगर हम ब्यूटेनोन प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ब्यूटेनोन बनाने के लिए बेटा हमें विच कैल्शियम सॉल्ट यूज करना होगा? इसमें 2, हाँ जी बेटा, लेकिन नाम इथाइल मिथाइल कैल्शियम नहीं बेटा चलेगा। कोशिश अच्छी आपकी, बहुत अच्छी कोशिश है, बढ़िया ट्राई किया आपने। बेटा आपका जो सॉल्ट है ना, वो इस तरीके का होगा, जैसे अगर मैं मिथाइल यूज करूं ना, तो CH3CH3 COO एंड Ca, और दूसरा जो सॉल्ट होगा दैट विल बी C2H5 COO एंड हियर C2H5
एंड COO, दो सॉल्ट लगेंगे तो बेटा इनका नाम जो है ना वो है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और आपका जो ये लास्ट जो नीचे लिखा है वो है कैल्शियम प्रोपियोनेट। जरा इसको ध्यान रखना बेटा। और आप जानते हैं इसमें बेटा ये बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? व्हाट बाई प्रोडक्ट वी गेट इन दिस? बेटा बाय प्रोडक्ट नहीं, हाँ कैल्शियम, आदित्य ने लिखा है बराबर। आर्यन एसिड नहीं आएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। आदित्य ने सही आंसर किया है और श्रिया भी आंसर कर रही है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बेटा देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। शायद से ये बेटा सर्कल बन गया। ओके ठीक है, मैं करता हूँ। ये देखिए ना कैल्शियम कार्बोनेट बेटा आपका ऐसा हो जाएगा और यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट विल गेट इट लाइक दिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। यस, सी आंसर मिला बेटा आपको। बी आंसर। मेरी आपसे बात हुई थी बेटा प्रोपेनॉल जब हम कर रहे थे, मैंने आपको बोला था एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। यस, हरेश का बिल्कुल सही आंसर आया है। करेक्ट आंसर मिला है। आदित्य सही आंसर है बेटा। ये जब प्रोपेनॉल अगर आपको मिल जाए ना बेटा, प्रोपेनॉल, मैंने प्रोपेनॉल के बारे में आपको बताया था कि एक मिथाइल का ब्रांच रहेगा और कीटोन में बेटा ब्रांच होना कंपलसरी है। यहां कहीं आपको कोई ब्रांचेस नहीं दिख रहे हैं, कहीं कोई ब्रांच नजर नहीं आ रहा है। अगर आप देखिए तो देखिए यहां ब्रांच भी दिखाई दे रहा है। जल्दी से बेटा आंसर कर सकते हैं हम लोग। तो आपका डी वाला आंसर मिलेगा आपको। कीटोन है मतलब ब्रांच रहेगा ही, अदरवाइज ब्रैकेट में लिखा रहेगा। तो आपका आंसर डी मिलने वाला है। When a tertiary alcohol with 4 carbon atom is oxidized, जी बेटा ये मुझे आपसे बात करनी थी। तो 3 कार्बन आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर है। सही आंसर दिया बेटा आपने, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के बारे में आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करने जाते हो ना तो पहले बेटा आपको अल्कीन मिलता है। पहले आपको अल्कीन मिलेगा और अल्कीन के बाद में आपको बेटा कीटोन मिल जाएगा ऑक्सीडेशन करते वक्त। जैसे कि हम लोग ऑक्सीडेशन किसके साथ करते हैं, विद CrO3। बेटा अगर आपके पास 4 कार्बन है तो यहाँ भी 4 कार्बन होते हैं, पर यहाँ पे 3 कार्बन हो जाता है, 1 कार्बन इज लॉस्ट। तो 3 कार्बन मिलेंगे, बिल्कुल सही आंसर। The end product in the following sequence of reaction is। हाँ जी बेटा, ये रिएक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं, 11th में भी था ये। बेटा डी आंसर। यस यस। दिस आई थिंक यू ऑल नो बेटा, आपको पता है कि एसिटिलीन इज व्हेन रिएक्टेड विद दिस, you know, there is water HOH, so we get this hydrogen goes here and this OH gets, this joins to the CH, we get CH2 double bond CHOH, that is vinyl alcohol which on tautomerism। बेटा इसका टॉटोमेरिज्म अगर आप करने वाले हैं तो यू आर गोइंग टू गेट एसिटल्डिहाइड। और बेटा एसिटल्डिहाइड वाली बात अभी अभी मैंने आपको सिखाया था
कि एसिटल्डिहाइड में अगर आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेंगे विथ दिस CH3MgI, so you are going to get isopropyl अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलने वाला है। और फर्दर देन व्हाट वी हैव टू डू, और उसके बाद ऑक्सीडेशन करने की बात आ गई है, तो बेटा ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, जरा आप देख लीजिए, आपको मिलने वाला है CH3 एंड दिस C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज CH3। तो बेटा पहले तो काफी लोग ए आंसर कर रहे थे, कुछ लोग बी आंसर कर रहे थे, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था बेटा, काफी लोग ने पहले ए ही लिखा हुआ था शायद से। आप सारी चीजें देख लीजिए बेटा, ये हमने पहले किया हुआ 11th में, ये जो होता है आपका ए, दैट इज ए इज दिस। और जब आप ग्रिग्नार्ड मिलाते हैं तो बेटा आपको यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिला था अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। और अगर आप ऑक्सीडेशन करने जाएंगे तो आपको बेटा यहाँ पे सी मिलने वाला है। इन द रिएक्शन आई विल से दिस, जी बेटा थोड़ा सा कोशिश करनी होगी ध्यान देने का, और शायद बता पाएंगे आप। बेटा ये आंसर आपने सी दिया है, इसका सी आंसर कैसे हो सकता है? ये सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, आदित्य, आर्यन, गौरव जो दिख रहे हैं, और तन्मय ए बोलना चाहते हैं। तो हम तन्मय का आंसर ले लेंगे। बेटा नंबर 4, बेटा कैसे दोनों एक चीजें साथ एक साथ कैसे आ सकती हैं? आप बेटा जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? बेटा ये कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो में दोनों प्रोडक्ट एक जैसे कैसे बोल सकते हैं आप? मींस काफी लोग ने आंसर किया है बेटा, दोनों सेम बोल रहे हैं, यहां भी सोडियम है बेटा, यहां भी सोडियम है, कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। दोनों में सोडियम कैसे हो सकता है? दोनों जगह पे OH नहीं हो सकता बिल्कुल। अब बात पड़ जाती है नंबर 1 एंड 2। तो ऑब्वियसली बेटा आप शायद जानते होंगे कि क्रॉस कैनिजारो में आपका फॉर्मल्डिहाइड प्रीफर्स ऑक्सीडेशन। बेटा ये ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, तो ऑब्वियसली ऑन ऑक्सीडेशन बेटा ये HCOOH बनाएगा, बट यहाँ पे अल्कली होने की वजह से, ड्यू टू दैट अल्कली हो जाने की वजह से ये हाइड्रोजन नहीं बनेगा और सोडियम सॉल्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बेटा आप आंसर फर्स्ट बताने वाले हैं। सर द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड लिबरेट्स, ये तो बेटा मैंने भी सिखाया था थोड़ी देर पहले। तन्मय आपने बहुत जल्दी बेटा सी मार्क किया, पर सी में नहीं बनता है बेटा, नाइट्रोजन गैस मैंने करके दिखाया था अभी। प्रियांबी ने सही आंसर किया है, अभिनिधि भी आंसर कर रही है, रुचिता सही आंसर कर रही है, गौरव भी, अब सब आदित्य, सबके राइट आंसर आ रहे हैं। बेटा ये अभी हमारी बात हो चुकी थी कि जो प्राइमरी अमाइन होता है यही आपको नाइट्रोजन देता है विथ नाइट्रस एसिड। ये 498 पेज पे बेटा ये है आपका रिएक्शन है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन यूजिंग नाइट्रस एसिड। ठीक है बेटा, ओके, अच्छी बात है, शायद मैंने मार्क भी कर दिया है, ओके ठीक है बेटा। ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बाइल अमाइन, ये तो बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा कार्बाइल अमाइन, ये भी मैंने सिखाया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि आप आंसर कर पाएंगे या नहीं जल्दी से। बिल्कुल सही सी आंसर दिया है आपने आदित्य, और काफी लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट। रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम बाई, बेटा ये भी मैंने बताया था आपको, फ्लोरीन वाला रिएक्शन, तो आपको बाल्सी मैन, ये सी राइट, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप, करेक्ट, बहुत अच्छा है बेटा, आपने बहुत ध्यान भी दिया था, अच्छा किया था। नेक्स्ट गैब्रियल, बेटा गैब्रियल किसके लिए होगा? गैब्रियल क्या प्रिपेयर करने के लिए होता है बेटा? ये सी प्राइमरी बोल रहे हैं बेटा, वैसे दोनों हो सकता है बेटा। यहाँ पे देखिए क्या होता है मालूम है, ये जरूरी नहीं है दोनों भी आ जाएंगे बेटा, प्राइमरी एरोमेटिक भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दोनों भी आ जाएंगे यहाँ पे, मोर देन वन करेक्ट आंसर हो गया ये। बेटा हिंसबर्ग मैंने आपको समझाया तो शायद आपको याद होगा कि हिंसबर्ग में क्या करेंगे बेटा आप। बिल्कुल सही, ये हिंसबर्ग आपके अमाइंस के लिए होता है, तो अमाइंस बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, बिल्कुल सही करेक्ट है। और आगे देखते हैं बेटा ये क्या चीज आ गया हमारे सामने। ये पहले x क्या देगा, y, और फिर z क्या देने वाला है। आप एसिटिक एनहाइड्राइड बोलना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? नहीं बेटा, इस बार सबके सबके आंसर गलत हो रहे हैं, आंसर नहीं आ रहे बराबर। हाँ पूजा का आंसर सही आया है, तो प्रियंबी आर्यन का भी आंसर आ चुका है, यू आर राइट। जैसे कि आपको पता होगा बेटा, ये जो है ना, ये आपका एसिटामाइड होता है, ये होता है आपका CH3CONH2। और उसके बाद बेटा और अगर आप डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं, ये जो P2O5 देख के लोगों ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी बेटा, ये P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत अच्छी बात है, पर मिथाइल साइनाइड बनने वाला है। और मिथाइल साइनाइड बेटा वाटर निकल जाने के बाद देखिए यहाँ से H2 निकल गया, और यहाँ से ऑक्सीजन वाटर निकल जाने के बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड का बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं, ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस it gives up CH3COOH. फाइंड आउट द प्रोडक्ट। बेटा ये प्रोडक्ट जरा देखते हैं इसमें क्या बन जाएगा। आपको बेटा लास्ट वाले रिएक्शन का नाम पता है कि विच रिएक्शन इज दिस? नहीं बेटा, आगे है, केम1 भी है, केम1 भी मिलने वाला है। ये क्या होता है जनरली बेटा, ऑर्गेनिक लेने के पीछे रीजन ये था ना कि बहुत सारे बेटे ओलेटाइल होता है, ध्यान से वो निकल जाता है, चीजें याद नहीं आती हैं। वैसे मैंने देखा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। केवन भी है आगे, ये हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो आपको तो पता ही होगा बेटा हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या हो जाता है। जैसे यहां पे मिलने वाला है आपको CH3CH2CN, ठीक है ना। अगर पार्शियल करेंगे ना बेटा, तो ये बनने वाला है आपका CH3CH2CONH2। ये आपका यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, और लास्ट में फिर आप समझ चुके होंगे कि जो आपका ये बनने वाला है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट इज CH3CH2NH2 which is here. बस शायद से बेटा ये कुछ इसके बाद ही बस आपका केम1 आ रहा है। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन इज कैसा अमाइन है बेटा? ये तो भी मैंने थोड़ा जल्दी की थी बेटा, यहाँ पे जल्दबाजी की, आप जल्दी से आंसर कर सकें, जल्दी आगे जाएं। सी आंसर बिल्कुल सही है बेटा। टर्शरी कैसे पहचान पाओगे? टर्शरी आप अल्काइल गिन लिया करो, एक अल्काइल है, दूसरा अल्काइल है, तीसरा भी यहाँ पे तीन अलग अलग दिख रहे हैं। अगर आपको तीन ऐसे अलग दिख रहे हैं तो टर्शरी है, दो दिखते हैं तो सेकेंडरी है, एक दिखे तो प्राइमरी है। बिल्कुल सही है आंसर है। अब देखिए बेटा, जो आप बता रहे थे, बात कर रहे थे आप, थोड़ा सा आपको लग रहा था कि सर वो केम2 ज्यादा पढ़ लिया आपने, तो जरा बेटा केम1 की तरफ ही आ जाते हैं। तो ये सोल्यूशन कैसे करना होगा हमें आंसर। यस बेटा, जो देखो क्या होता है, मतलब जो केम1 के जानकार हैं यहाँ पे, मैंने देख रहा हूँ काफी लोग अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब जो अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने आंसर भी कर दिया, बहुत जल्दी आंसर कर दिया आपने। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए आंसर करेक्ट है बेटा। अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको आप जब लिखेंगे तो माइनस आपका 1/1/2 हो जाएगा, मतलब -2। और जब मैं यहाँ पे इक्वेशन को और आगे लिखूं तो देख लीजिए इस तरह से, इक्वल टू 1/2, शायद से दिख रहा होगा आपको। अगर क्वेश्चन में अगर आप देखें बेटा, तो वहां पे जब को फाइंड आउट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी,
that we can get it like this answer your this A, you'll get this. और काफी जल्दी लोगों ने आंसर किया बेटा ये. अगर उसी तरह से बेटा यहां अगर आप सॉल्व करें तो यहां भी आपको देख लीजिए जैसे कि दिखाई दे रहा है ये 3 ये दिख रहा है. अगर आप यस काफी सही आंसर है. नहीं बेटा अनुभव नो नहीं बेटा नहीं, कुछ लोगों के आंसर गलत हो रहे बेटा. देखिए इसमें आपको जब आप यहाँ लिखने जाएंगे इस तरह से इक्वेशन जब आप लिखेंगे dA/dt और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 था बेटा, तो 3 के लिए 1/3 हो गया. और यहाँ पे माइनस तो आपको जानते हैं कि रिएक्टेंट में माइनस साइन रखना है आपको. और इधर आप देखेंगे इक्वल टू आएगा आपका 1/2 और जो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखना है वो इस तरीके से आ गया. और अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं d/dt ऑफ दिस प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा. ये थोड़ा सा हाँ यहां मिलने वाला है. देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा फिर -2/3 मिलेगा ना. सिंपल क्वेश्चन है बेटा, वैसे काफी लोगों ने सही आंसर किया हुआ है. तो ये बेटा इसमें आंसर मार्क कर दूं. अब ये बेटा ये इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए जरा किस तरह से सॉल्व करें. जरा ठीक से इसको रीड करके देखिए, बहुत जल्दी आंसर क्विक आंसर आपको मिलेगा. इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बेटा. यस जी जी हाँ जी बेटा, क्या आंसर मार्क कर रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है. बहुत सही पहचान लिया बेटा आपने. बिकॉज जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बेटा x के लिए अगर 2 है तो फिर आपके y के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है तो ये 1 होगा. बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपको. सो हियर इफ विल सी दिस 2 एंड दिस 1 3. अच्छा पहचान आपने, जल्दी आंसर मार्क कर लिया हम लोगों ने. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, और आपको बेटा रेट कांस्टेंट का पता लगाना है. यस बी बिल्कुल सही आंसर है. पूजा ने स्टार्ट किया, फिर उसने श्रेयस और काफी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं. यस बेटा बी बिल्कुल सही आंसर है. तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0.693 by t half. Yes. So k equals to सही आंसर मिल चुका है 0.693 by this 6.93. और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.1 आंसर मिलेगा पर आर. ठीक है. फॉर रिएक्शन ये जरा देखते हैं. डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बेटा ए को डबल करने पे आपको 4 मिल रहा है, पर जब आप बी को डबल कर रहे हैं जरा देख लीजिए क्या होता है. डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल्स. ए को डबल करने पे आपको 4 मिल जाता है, पर आप अगर बी को डबल कर रहे हैं तो आपको डबल ही मिल रहा है. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया है. क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बेटा ऐसे हो रहा है कि ए के लिए आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 मिलेगा और बी के लिए 1 ही आएगा. बेटा इस तरह के सारे क्वेश्चंस काफी टाइम देखे गए हैं, इसलिए मैंने उसको कलेक्ट किया था कि अब देखिए इस तरह से एक बार क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व करना होगा.
नहीं बेटा, सी आंसर तो नहीं मिल पाएगा बेटा इसमें। आपने सॉल्व किया बेटा, ट्राई किया इसको? गौरव बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ये आर्यन बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत जल्दी आपने फाइंड आउट किया। इसमें होता ये है बेटा कि जो आपका W है इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल और दिस V2 माइनस V1। यहाँ प्रॉब्लम आती है बेटा कन्वर्जन में, काफी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये M3 जो लिखा हुआ है उसका क्या करें, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। जैसे कि आपका प्रेशर दिया हुआ है 100 और अगर आप ये जो V2 माइनस V2 तो 1 है, पर अगर आप उसका कन्वर्जन करेंगे जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5m क्यूब इज नथिंग बट दिस मींस इट इज 5000 एक्चुअली बेटा, ये 5000 लीटर है dm क्यूब। सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5000। तो अगर बेटा अगर सॉल्व करने जाते हैं तो -100 और ये आपका 4999, ठीक है ना बेटा। यस यस बिल्कुल। और लास्ट में आपको मिल रहा है फिर 4999 जो आपका है, और 00 बेटा जूल्स में आ रहे हैं। अगर हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करें तो विल गेट दिस -499.9 किलो जूल। कंप्रेस्ड। Hello, sir. Yeah, it is yeah as it is given. So बेटा यहाँ पे V2 माइनस V1 ही किया ना बेटा, ये दिस V1 कंप्रेस्ड फ्रॉम दिस इज V1 और बेटा ये आपका V2 है, तो वही तो किया था ना, V2 माइनस V1 ही किया बेटा ये। दिस इज या V2 माइनस V1 करेक्ट है। चलो बेटा यहाँ देखते हैं। नाउ विल सी दिस। बेटा ये रिएक्शन देखते हैं, इसमें ये इसमें क्या मिलेगा आपका आंसर। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ये करेक्ट आंसर दिया आपने। आर्यन आपने बहुत जल्दी फाइंड आउट किया और बाकी लोगों ने, तन्मय ने भी फाइंड आउट किया हुआ है और सुयोग अच्छा किया बेटा। गौरव अच्छा आंसर किया। पूजा इसमें बेटा आपको फाइंड आउट करने के लिए ये जो समेशन ऑफ जैसे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आपका है एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू आप समेशन ऑफ दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप करने वाले। मैं पूरा बेटा इधर नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आई राइट रिएक्टेंट हियर, रिएक्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं, रिएक्टेंट कर लेते हैं। तो अगर बेटा हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने जाएंगे तो विल गेट दिस मींस वी कैन से हियर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये दोनों ऐड करना है और आपको माइनस आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज CaCO3। अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करें बेटा तो -635 प्लस this -393 and this minus
1207. So final answer will get this minus 1028 plus 1207. This gives 179 kilojoule per mole. Now as you know, बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है कि 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम के लिए बेटा वैल्यू दिया हुआ है 68 किलो कैलोरी heat is evolved. So now for 7.2 gram, if you want to find out, so x, so then we can write here this x equals to 68 into 7.2 and divide by this 18. Yes, you'll get this all on operation chemistry. Don't worry about that. Okay, so here the answer which we are going to get is 27.2 kilocalorie. So where is this? या बेटा ये मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था, मेरी आपसे बात हो चुकी है, ये 2.8 है, इसका मतलब पता चलता है कि that unpaired electrons, बेटा unpaired electrons should be 2. बेटा आपको क्या लगता है कि unpaired electron कहाँ पे 2 होगा इन आउट ऑफ दिस ऑल, कौन देगा? तो पूजा आपने बिल्कुल सही आंसर किया, बहुत फास्ट आपने आंसर किया है. निगेटिव आंसर, अरे बेटा ये कहाँ निगेटिव आया था बेटा, इसके अंदर आर्यन निगेटिव बोल रहे थे बेटा, वो इवॉल्व डिकम्पोज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, बेटा लिबरेटेड हमेशा पॉजिटिव में आंसर आता है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर करना पड़ेगा, लिबरेटेड वर्ड है ना, अगर डेल्टा एच बोलता तो निगेटिव होता. चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं. बेटा इन्होंने निकल वाला आंसर दिया है बिल्कुल सही, क्योंकि निकल का नंबर है 28, दैट इज 3d8 एंड 4s2, जैसे कि निकल +2 दिया हुआ है, तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे 3d8 होने वाला है और आपका 4s0 हो जाएगा. सो आप 3d में आप जैसे कि आपको पता है, यू नो दिस, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद you'll get this 1 2 3 4 5 6 7 8. बेटा आपके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है, अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, तो आपको आंसर 2.8 मिलेगा, बिल्कुल सही है. ठीक है, देखते हैं बेटा और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, गैडोलिनियम के बारे में मेरी बात हुई थी बेटा आपसे, प्लीज आप याद रख लीजिएगा कि जेनॉन होता है, और बिल्कुल सही. नहीं बेटा सी वाले आंसर नहीं आएगा, सी कैसे आएगा बेटा, Gd2+ लिखा हुआ है, गैडोलिनियम 64 होता है, गैडोलिनियम का नंबर है 64, वो होता है यहाँ पे आपका, मैंने बताया था कि 4f5d6s, मेरी बात हुई थी आपसे 712. तो गैडोलिनियम बेटा 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये बचेगा. अब मिला आंसर, हाँ डी मिला ना, बिल्कुल सही है, यू आर राइट, बिल्कुल सही है बेटा. और देखते हैं कि हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं. यस, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, शायद से 1-2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं. कंसीडर सेल रिएक्शन, जैसे बेटा जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर. फॉर द अबव डेल्टा जी चाहिए, डेल्टा जी आप अच्छी तरह से जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFe 0. और बेटा एन आपको कैसे पता चले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. और आपका फेरेडे 96,500, और आपको अभी E0 की जरूरत है, तो E0 कैसे मिल जाएगा बेटा, E0 सेल निकालने का फॉर्मूला याद रख लीजिए, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू आपका क्या हो रहा है 0.44 माइनस 0.74, और बेटा इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.30. सो अगर हम ये वैल्यू पुट करें बेटा यहाँ पे 3, सो नाउ विल गेट दिस, फिर आपको मिल जाएगा 173 एंड दिस 700 जूल, जो कि आप लिख सकते हो -173.7 किलो जूल.
तो बेटा ये आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को? आंसर ए मिल रहा है। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस बेटा, ए मिल गया। ठीक है, तो और इसी तरह से बेटा और क्वेश्चंस देखते हैं और आगे क्या दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और सम है यहाँ पे। सो ये कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहाँ पे द सेल रिएक्शन ईएमएफ, ईएमएफ बेटा तो जिससे मेरी बात हुई थी कि ई जीरो सेल, अब बेटा इसका फॉर्मूला है कि ई ऑफ कैथोड माइनस एनोड। बेटा यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड, तो बेटा आप तो जानते ही हैं कि इसमें कैसे पहचान पाएंगे कौन कैथोड एनोड है। तो आपका ये जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा वो एनोड है, और कैथोड आपको दिखाई दे रहा है कि कॉपर है, तो पहले कॉपर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। सो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने जाते हैं तो 0.337 और माइनस माइनस 2.37, बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाने पे आपको मिलने वाला है 2.707 वोल्ट। बेटा देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है आपको ये 2.7, तो यहाँ पे आंसर है आपका यस। बेटा एक और देख लें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, शायद से एक ही दो क्वेश्चन और है बेटा, दो क्वेश्चन और भी है क्या? अरे हो, दो तीन और बचे हुए हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten CaCl2, current is passed through the cell for 200 seconds, the mass of product formed at cathode, बेटा कितने बनेंगे? यस बेटा, दो तीन सम और बच रहे हैं, अगर आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूं, या हमें कंटिन्यू करना होगा? सॉल्व करें बेटा ये। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ये आपका Ca2+ है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो यू विल गेट दिस कैल्शियम हियर, और आपको फॉर्मूला पता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक मास by this valency, so you'll get this 40/2, so that is 20 here. आप जानते हैं बेटा वेट निकालने के लिए दूसरा आगे हम लोग फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट इक्विवेलेंट वेट into current in ampere into time in second by this Faraday. So अगर आप बेटा इसको सॉल्व करने जाते हैं और आगे, so you'll get this 20 into करंट पास किया हुआ है 0.05 into 200 बेटा सेकंड दिया हुआ है, और फेरेडे आपका 96,500 है। सो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं बेटा, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट दिस, आप सम देख लीजिए बेटा, वापस फिर से सारा सम देख लीजिए हाँ पूरी तरह से, है ना? अब देखिए सारा इंफॉर्मेशन है बेटा, ये आपको करंट कितना है, आपका टाइम क्या है, आपका मॉलिक एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एंड इक्विवेलेंट वेट हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो नाउ यू विल गेट दिस 0.000 एंड 2073। सो वेयर इज दिस? जी बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा आपका, और ग्राम ऑफ कैल्शियम। बस बेटा सॉल्यूशन और क्वालिटेटिव के एक ही दो सम बचे हैं बेटा, बस दो सम हैं, जरा वो भी देख लेते हैं कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आप ये सम है, आप जानते हैं इसके बारे में, यू नो दिस, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए लाइक KB इक्वल्स टू डेल्टा TB डिवाइड बाय दिस मोलालिटी। ठीक है बेटा, ये सम आप मतलब ये फॉर्मूले के ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे। तो एज इट इज गिवन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस 100.18 इज गिवन, और आपको अगर सॉल्व करना है तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 100.18, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 होता है, और डिवाइड बाय दिस मोलालिटी 0.1 दिखाई दे रहा है, सो हियर यू विल गेट दिस 0.18 divided by 0.1, so you are going to get here this 1.8. So answer A. टाइम कम है बेटा, बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो चुकी है। सो नाउ नेक्स्ट बेटा एक लास्ट शायद से है, या फिर और जी बेटा लास्ट, बस बेटा ये लास्ट है हमारा ये।
what is the molality of solution of certain solute in a solvent. If there is a freezing point, depression is given, and if freezing point constant is also given here. So for this sum, now again we'll go for that same formula, delta TF equals to, this is a depression in freezing point, and this depression constant here into molality. So we are going to write here this. बेटा इसका आपको दिया हुआ है वैल्यू 0.184. अब शायद से आंसर कर रहे होंगे. यस, बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, यू आर राइट, करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप. इनटू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 18.4, और फिर मोलालिटी बहुत जल्दी आपने आंसर पता लगाया बेटा. 0.184 डिवाइड बाय दिस 18.4, एंड हियर वी हैव 0.01. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ए. सो जितने क्वेश्चंस बेटा हमने ट्राई करने थे ऑलमोस्ट कर दिए हैं. और जो हमारा एक टॉपिक बेटा छूट जाता है, जैसे कि एक आपका होता है यस. और बेटा और ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और ऑपरेशन केमिस्ट्री टाइप करें, ओपी सर मिल जाएंगे आपको. ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें वहां देख सकते हैं. जो चीजें हमारी यहाँ पे छूट गई होंगी अगर थोड़ा बहुत भी, तो ऑपरेशन केमिस्ट्री के बाद आप ओपी सर भी लिख दें तो जल्दी से आपको मिल जाएंगे. ये सारा ढेर सारा आप वहां से नॉलेज ले सकते हैं. यस, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट. बहुत अच्छा करें आप, और सीईटी में अच्छे से मार्क्स लाएं, जिससे आप सभी के एडमिशंस अच्छे कॉलेज में हो जाएं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. It was a great interactive and a learning session. And with this, we come to today's end of seminar. And tomorrow, again, we will be meeting you at the same time. And before we part, I would like to express the vote of thanks. I take this privilege to extend heartfelt gratitude on behalf of KC College of Engineering, Management Studies and Research. I sincerely thank our distinguished speaker, Mr. Om Prakash J. Yadav, who took out valuable time from his hectic schedule and accepting our invitation and grace the occasion. Thank you very much, sir. It was a great interactive session. Moving on to the management, it is admirable on the part of our dear chairperson, Dr. Harsh Khanna, for her tremendous support and encouragement. I would like to convey sincere thanks to our enthusiastic and efficient managing director, Dr. Sai Kiran Khanna, for his support. I would like to express sincere thanks to Director Ms. Pushpa Naran for her support and guidance. I also thank Director of Institutional Growth, Dr. Pooja Rai Pradhan, for her constant motivation and encouragement. I express heartfelt gratitude to the principal of KCC MSR, Dr. Vilas Navre, for his enormous knowledge and expertise. I would like to express sincere thanks to the HOD of MMS department, Mr. Shrikesh Pujari, and his team to take up this initiative to host such a wonderful program. And a heartfelt gratitude to all the organizing team for the efforts being put forward in the seminar. I also thank the participants and wish them all the best for the upcoming exam and making a huge success on the exam. And thank you everyone for your participation and for being there. I announce that tomorrow at the same time at 3 o'clock, we'll be again meeting for another session. So please be there. Thank you so much. Have a great evening, everybody. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Om Prakash sir. Thank you all the students.
Students, thank you very much for joining. You can cut your call. You can disconnect yourself from this call. Today's day is done. So thank you very much for joining. Please disconnect yourself from this call. Manjusha ma'am, Devika ma'am, Yes, sir. ma'am, anything निशांत else? सर निशांत सर Yes. मैंने एक्चुअली वो इसके लिए ऑन रखा है क्योंकि बच्चे लोगों को टेस्ट सीरीज का लिंक और फीडबैक का फॉर्म का लिंक रहे. Sir, already everybody has left. Okay, we Only will 8 left. people. Only 8 people we are remaining. Okay, we will left. Thank you, Om Prakash sir and the team. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah, It was yeah, a okay, sir. pleasure meeting you, sir. Yes, sir.